जमी से फूटा था सत्य का पहला पैगाम, तेरी जमी से फूटा था सत्य का पहला पैगाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। तेरी जमी से फूटा था। Very good afternoon to all the guests in the audience. We all welcome you to this talk on universal peace and brotherhood. Today we are honored to have Syed Abdullah Tariq from Rampur, who will be delivering this lecture, rather a talk from one of his books. Syed Abdullah Tariq has spent last 30 years of his life in studying various sacred scriptures. He is also lovingly known as Guruji among his students. Sir has a very good knowledge in Sanskrit, Arabic, Persian, Urdu, and English and Hindi. He has authored several books in the last 30 years on this topic and has led several peace missions in various parts of the country, mostly addressed on this. So some rules before we begin is that you are not allowed to ask question in between the talk. Once the talk is over, you can ask questions, but the questions can only be through slips. There are several people in the audience who have slips with them. You can ask them and you can write down your comments, questions, and we'll try to answer as many as possible within the limited time frames that we have. And in case we are not able to answer the questions over here, you can come to stall number 216, 17, 18 in hall number 12. With this, without making any further delay, I hand over the mic to sir to please begin his talk. Thank you. In the name of God, who created me, who created the whole universe, who created Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and who created those also who say that they do not believe in him. The irony is that the whole humanity is his creation, but even then, in his name, there are discords and people have differences, serious differences with each other in his name. All human beings, the whole humanity, according to all major religions, are the descendants of one man and one woman. I'll give you some references. This is from Ramcharitmanas. References from Hindu scripture. Ramcharitmanas. Swayambhu Manu Aru Satrupa. Swayambhu Manu and Satrupa. Jinete bhe narasrishti anupa. To whom this creation, this excellent creation belongs to these two, Swayambhu Manu and Satrupa. They are the descendants of these two, one man and one woman. This is what Ramcharitmanas says. The Bible says, Old Testament, Genesis, chapter 1 and verse number 27, 28. God created man and woman, and then God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth. So according to Ramcharitmanas and according to Bible too, all people are descendants of one man and one woman. Quran also says that خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. God created one man and created its mate of the same kind and spread from them a large number of men and women. So I have given references from these three religions. The Sanatan Dharma, Christianity and Islam. These major religions, they profess that the humanity started from one man and one woman. So they are all blood relatives.
In the traditions of, in the biblical traditions, in the traditions of Bible, the first man was called Adam. And his wife Eve, Adam and Eve. They were the first man and woman. In Islam, they are called Adam and Hawa. And you have I've just given the example, they've given the reference here, that in Sanatan Dharma, they were Manu and Shatrupa. I must make it clear here that Manu was not the name of any person or sage. It was a title. It was a title given to 14 great persons in different eras. In 14 manvantars, in 14 eras, 14 manvantar के अंदर 14 मनु हुए. The first was स्वयंभू मनु, जिनकी ये सब संतान है, स्वयंभू मनु एंड शत्रुपा. जी मुझे बताया गया कि हिंदी स्पीकिंग ज्यादा है ऑडियंस. एनीवे हम मिक्स बात कर लेंगे. ये मनु और शत्रुपा, मनु किसी का नाम नहीं था. मनु वाज ए टाइटल गिवन टू 14 पर्सन्स. फर्स्ट मनु वाज स्वयंभू मनु. एंड द ह्यूमैनिटी स्प्रेड. लोग दुनिया में फैलते गए संसार के अंदर. एक समय ऐसा आया आगे चलने के बाद कि दुनिया में पाप बहुत भर गया. देयर वाज सिन ऑल अराउंड. देयर इज ए स्टोरी इन ऑल द स्क्रिप्चर्स, इन ऑल द रिलीजन्स. No less than 10 पुरानास. They tell a story. कम से कम 10 पुरानों में एक कहानी है, एक स्टोरी है. वो स्टोरी जो है वो कुरान शरीफ में भी है, वो स्टोरी बाइबल में भी है. तो फिर अब हम उसे स्टोरी नहीं कहेंगे. बिलीवर्स के 90% से ज्यादा लोगों के स्क्रिप्चर्स अगर किसी एक इवेंट के बारे में कह रहे हैं तो वो स्टोरी नहीं है. दैट वाज एन इवेंट देन, कि ऐसा हुआ था. बट फर्स्ट, उससे पहले एक बात और. इस्लामिक ट्रेडिशंस ये कहती हैं कि द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन वाज एडम. द फर्स्ट वुमन वाज ईव. पहले इंसान आदम थे. और एडम एंड ईव दे वर डिसेंडेड फ्रॉम द हेवंस टू द अर्थ. वहां से जमीन पर उतारे गए. इस्लामी ट्रेडिशंस ये कहती हैं, ये एक हदीस है, दिस इज हदीस द सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद. ही सेड कि द एडम वाज मेड टू डिसेंड इन हिंद. सो हिंद, द वर्ड हिंद वाज देयर 1400 years ago इन द वोकैबुलरी ऑफ अरब्स. अरबों की जबान में हिंद नाम मौजूद था. हमारे यहां बहुत मशहूर है ये. मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर्स से ये बात सुनी कि इधर अफगानिस्तान से जो लोग आए वो अपनी भाषा में सा को हा से बदल देते थे. ऐसे सिंध से हिंद बन गया. ये बिल्कुल इरोनियस है, बिल्कुल गलत है. उससे बहुत पहले, यानी अब से 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद की जबान में हिंद वर्ड मौजूद था. एंड देयर आर नॉट लेस देन 19 हदीस और सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद जिसके अंदर हिंद वर्ड आया है. ये सारा एरिया उनकी लैंग्वेज में हिंद कहते थे इसको. ये सा को हा से नहीं बदला. एंड नॉट ओनली दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग टुडे, विच वी कॉल इंडिया. सिर्फ इतना सा नहीं, हिंद इतना सा नहीं था जैसे वो लोग हिंद कहते थे. इसे बात में आगे करूंगा. लेकिन आदम को, जो पहले इंसान को जब यहां उतारा गया है, ये इस्लामी ट्रेडिशंस कह रही है. This quotation has been taken from a commentary of Quran, from a famous commentary of Quran by Shawkani, Fathul Qadir. The commentary of Quran, the name of the commentary of Quran is Fathul Qadir. वहां से ये ट्रेडिशन, ये वहां से उस कोटेशन ये मैंने लिया है. ये कम से कम 18 ऐसी रिवायात और ट्रेडिशन और हैं जिसके अंदर ये बताया गया कि आदम को जब यहां पे उतरे तो हिंदुस्तान से, हिंद से स्टार्ट किया, तो सारी ह्यूमैनिटी फिर यहां से शुरू हुई. नंबर 1. बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं यहां पर कि इस्लामी बिलीफ की मैं बात कर रहा हूं यहां, और खास तौर से इस बात को मुस्लिम सुने कि आपकी ये नहीं आता आप लोगों के सामने ज्यादा, लेकिन कुरान की कमेंट्रीज ये कह रही हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हैं, उनकी सेइंग्स हैं कि ह्यूमैनिटी और इंसानियत यहां से शुरू हुई. और एडम वाज, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स,
द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, पहले प्रॉफिट थे या पहले रसूल थे या पहले इशदूत थे आदम। इससे हमें कुछ कंक्लूजन्स आते हैं। लेकिन इसे और देख लीजिए कि लफ्ज आदम, एडम, द रूट ऑफ दिस वर्ड इज नॉट फाउंड इन अरेबिक, दिस इज नॉट एन अरेबिक नेम। इसका मादा अरबी जबान के अंदर नहीं है। दुनिया की बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, बात लंबी हो जाएगी, मैं उसे छोड़ रहा हूं। दुनिया में एक ही लैंग्वेज में जिसमें इसका रूट मिलता है। जैसे हम एडम लिखें हिंदी में तो वो ऐसे लिखा जाएगा, द प्रोनाउंसिएशन चेंजेस विथ स्लाइट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस। हम 10 किलोमीटर 20-50 किलोमीटर जाते हैं, एक्सेंट चेंज हो जाते हैं। आदम, कहीं इसको आदिम अगर कहा जाता हो तो ये आदिम जो है ये संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, एंड इट मीन्स द फर्स्ट, पहला। तो आदम जो पहले इंसान थे, उनका नाम जिस लैंग्वेज में था वो इसीलिए था इस लैंग्वेज के अंदर के ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। तो नाम ही उनका ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज के अंदर था आदम का। जैसे आदिम, आदि वॉज द फर्स्ट। नाउ वी डिराइव सम कंक्लूजन फ्रॉम हियर कि हिंदुस्तान इज द मदरलैंड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, नंबर 1। अगर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फेथ कि मदरलैंड सारी ह्यूमैनिटी की, ह्यूमैनिटी यहां से स्टार्ट हुई। नंबर 2, if Adam was according to Muslim the first prophet of Islam, then Islam originated from Hindustan, not from Saudi Arabia. According to Islam, Prophet Muhammad was the last prophet of God. Adam was the first prophet, and when he descended from heavens on this part of the earth in Hindustan, so Islam originated from Hindustan. And the last and the most important deduction, Hindustan is the holy land of all Muslims of the world. They must know it and they must understand it कि हमारी पुण्य भूमि है, ये मुसलमानों की पुण्य भूमि है। इसलिए कि इस्लाम ओरिजिनेट जब यहां से हुआ तो फिर मुसलमानों की पुण्य भूमि या होली लैंड हुई या नहीं हुई। और दुनिया के सारे मुस्लिम्स की, फॉर ऑल, पूरी दुनिया के सारे मुस्लिम्स के लिए ये पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द लैंड शुड बी पुण्य भूमि और होली लैंड। फिर एक समय ऐसा आया, द टाइम पास्ट, मेनी एरास, जमाना बहुत सा गुजरा, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि चारों तरफ पाप बहुत फैल गए। अब एक दूसरे मनु आ रहे हैं कई बहुत से जमाने के बाद। आफ्टर स्वयंभू मनु वी कम अक्रॉस मनु ऑफ द डिल्यूज, महाजल प्लावन वाले मनु। सारी धरती पाप के अंदर जल डूब गई। देन द गॉड सेड टू मनु ऑफ द डिल्यूज, ये वो मनु नहीं है स्वयंभू मनु, क्योंकि मनु जो है वो एक टाइटल है, मनु किसी का नाम नहीं है। तो उनसे कहा ईश्वर ने कि अब प्रकोप आएगा, द होल अर्थ विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर, इट विल बी फ्लडेड, यहां सब खत्म हो जाएंगे, सबका संहार हो जाएगा। ही वॉज डायरेक्टेड, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू बिल्ड एन आर्क और शिप। उनसे कहा गया, ये है वो स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये स्टोरी पुराणों में भी है, कम से कम 10 पुराणों के अंदर। ये स्टोरी कुरान शरीफ के अंदर भी है, ये स्टोरी बाइबल के अंदर भी है। तो फिर ये सिर्फ स्टोरी नहीं है। बिलीवर्स का 90% लोग जिसके उनके स्क्रिप्चर से जिस चीज को कह रहे हैं तो वो एक घटना है, वो एक इवेंट था जो हुआ था। उन्होंने जो ये नोआह थे, उनका नाम नूह था अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस, मनु ऑफ द ग्रेट डेल्यूज। वो जो मनु थे जिनके समय में ये हुआ, उनका नाम NOAH नोआह था अकॉर्डिंग टू बाइबल। और भविष्य पुराण में भी उनका नाम दिया हुआ है। मनु तो टाइटल था, मनु तो एक उपाधि थी। भविष्य पुराण में भी उनका नाम दिया हुआ है न्यू, अरबी में है नूह, और बाइबल के अंदर है NOAH नोआह। ये उनका नाम था, मनु ऑफ द डिल्यूज का। जब पाप बहुत बढ़ गए तो उनसे कहा गया कि एक
टू बिल्ड अ शिप, एक नौका बनाओ, उस पर अपने फॉलोअर्स को और मानने वालों को उसके ऊपर बिठा लो। अब धरती के ऊपर अब जितने पापी हैं सबका संहार होगा, एंड दे ऑल विल बी सबमर्ज्ड एंड ड्राउन्ड, दे ऑल विल बी किल्ड। सिर्फ वो सरवाइव करेंगे जो नौका या जो आर्क या जो शिप के ऊपर होंगे, उसके अलावा सब खत्म हो जाएंगे। एंड ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू प्लेस अ पेयर ऑफ एवरी एनिमल ऑन द शिप, और जितने प्लांट्स हैं उनका सीड रखने को भी कहा गया। फिर उसके बाद बारिश शुरू हुई, वर्षा शुरू हुई, द क्लाउड्स बर्स्ट, फ्लड्स नीचे से आए, सी लेवल ऊपर हो गया और सारी जमीन डूब गई, सब खत्म हो गए। सिर्फ नौका पर जो लोग थे वो बचे, सिर्फ नाव के ऊपर जो लोग थे वो बचे। मनु और मनु के साथ में कुछ उनके साथ में थे। सनातन धर्मी ट्रेडिशंस कहती हैं उनको ऋषि। कुरान ने जब इस इवेंट को डिस्क्राइब किया तो कुरान ने ये नहीं कहा कि कितने लोग थे, कुरान ने कहा कि बहुत कम लोग थे जो मनु के फॉलोअर्स थे, जो उस नौका के ऊपर थे। सनातन धर्म की ट्रेडिशंस कहती हैं कि 7 नर नारी थे, 7 men and women, and they were called सप्त ऋषि। तो अब मनु महाराज थे, हजरत नूह, और सप्त ऋषि उस नौका के ऊपर थे। फिर वो नाव रुकी और उसके बाद ह्यूमैनिटी दोबारा शुरू हुई। लेकिन यहां एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं, एक बड़ी पुरानी और बड़ी गलतफहमी है जो चली आ रही है, और प्रिवेलेंट जो आज तक है उसका मैं करेक्शन चाहता हूं। हिंदुस्तान में वर्ड अभी तक यूज करता रहा हूं, मैंने भारत नहीं कहा, इसको यहां लोग बहुत से भारत कहते हैं। सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स ने कहा कि पूरा भारत इस फ्लड के अंदर डूब गया था। भारत वॉज द होल वर्ल्ड, भारत पूरी दुनिया का नाम था। ये भारत इतने से हिस्से का नाम नहीं था जहां पर आप रहते हैं। ये पार्ट हिंदुस्तान था। ये हिंदुस्तान भी जो था सिर्फ इतना सा नहीं था, ये आप देख लें कि थोड़ा सा जहां तक हिंदुस्तान लिखा हुआ ये सारा पार्ट हिंदुस्तान था। जो नाम दिया हुआ उनका था, अरब्स का, अरबों का दिया हुआ नाम था ओरिजिनली, ये हिंदुस्तान था। भारत पूरी, अभी तो जिस पार्ट के अंदर हम रहते हैं इसे मैंने इंडिया कह दिया, इसलिए कि इसे हम भारत नहीं कह सकते, भारत तो पूरी दुनिया थी। इसे हम हिंदुस्तान भी नहीं कह सकते, तो हिंदुस्तान का बड़ा छोटा सा टुकड़ा है इस वक्त जिसमें हम रह रहे हैं। ये खंडित हिंदुस्तान कह लें, टूटा हुआ, ब्रोकन हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की जो सीमाएं हमारे यहां इसे कहा जाता है, कुछ लोग हमारे यहां कहते हैं, ये मैप बनाते हैं और वो कहते हैं ये अखंड भारत है। अखंड भारत नहीं है ये, अखंड भारत तो पूरी वर्ल्ड था, बड़ी गलतफहमी में है, ये अखंड भारत नहीं है, ये पूरा पार्ट हिंदुस्तान है। भारत तो बहुत बड़ा था, अखंड भारत, बल्कि भरत खंड भी इससे बहुत बड़ा था इस हिंदुस्तान से। वो भरत खंड जो है वो ये पार्ट था। इसको यहां के जो स्क्रिप्चर्स है, सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स, उन्होंने इसको जम्बू द्वीप कहा था। ये पार्ट था जो भरत खंड था, और अभी जो गुजरा ये हिंदुस्तान था। ये भरत खंड है, इसके अंदर वेस्ट में ये टर्की तक गया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है। ईस्ट के अंदर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कोरिया है, कंबोडिया है, अप टू जापान। ये सारा पार्ट नॉर्थ में चाइना है और रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, ये सारा पार्ट जो था ये भरतखंड था, जिसे यहां के पुराणों ने जम्बू द्वीप कहा था। तो ये अखंड भारत नहीं है, ये भरतखंड है। अखंड भारत तो पूरी दुनिया थी। इसको हम, इसमें से हम फिर वापस आए यहां पर भरतखंड में, और भरतखंड से भी छोटा पार्ट ले लीजिए, जिसे आप कुछ लोग अखंड भारत कहने लगे। आप सिर्फ इतना सा पार्ट जो हिंदुस्तान था। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब यहां पर इस वक्त जो हमारे पास देश है इंडिया, जब इससे कुछ बड़ा था 1947 में इसके 2 पार्ट्स टूट गए, 2 विंग्स वर क्लिप्ड। ये जब 2 पार्ट इसके टूटे तो उसके बाद यहां की एक बहुत बड़ी आबादी ने ब्लेम किया मुस्लिम्स को कि वो मुस्लिम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्टीशन। बहुत से मुसलमानों ने ब्लेम किया हिंदुओं को कि वो अगर यहां पर जीने देते और वो यहां पर हमारे राइट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो फिर ऐसा नहीं होता। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिवीजन की दे ब्लेम हिंदूज। और कुछ और लोग हैं वो कहते हैं कि नीदर हिंदूज वर रिस्पॉन्सिबल
नॉर मुस्लिम्स वर रिस्पॉन्सिबल, वो कहते हैं ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से यहां पर नफरतें फैल गई और ये दो पार्ट टूट गए। अच्छा ठीक है, 1947 के अंदर ये दो पार्ट टूटे, डिवीजन हुआ। यही मान लीजिए एक वक्त को मुसलमानों ने तोड़ा, मुसलमानों की वजह से हो गया। इससे पहले हिंदुस्तान इतना बड़ा था, हिंदुस्तान के अंदर इंडोनेशिया था, ये कब टूटा था? हिंदुस्तान के अंदर मलेशिया था, ये कब टूटा था? 1400 साल से तो पुरानी बात है। मुसलमान तो 1400 साल से हैं यहां पर। जो आज मुस्लिम्स कहलाते हैं, आज मुसलमान कहलाते हैं, वो तो 1400 साल से हैं, इससे पहले नहीं थे। और 1400 साल का पीरियड नॉन हिस्ट्री है। ये सारे पार्ट जो है, ये अगर इंडिया हिंदुस्तान का पार्ट थे तो ये इंडोनेशिया अगर कभी टूटा था 1400 साल से पहले टूटा था। अगर मलेशिया कहीं टूटा था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो 1400 साल से 1500 साल से पहले की बात है, इसलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नहीं है। अफगानिस्तान अलग हुआ था, ईरान अलग हुआ था, ताजिकिस्तान अलग हुआ था, कजाकिस्तान अलग हुआ था, कोरिया अलग हुआ था, थाईलैंड अलग हुआ था, कंबोडिया अलग हुआ था, जापान अलग हुआ था। ये प्री हिस्टोरिक बातें हैं, प्री हिस्टोरिक बातें हैं। तो ये 1500 साल से पहले की बात है, तब मुसलमान नहीं थे। बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल था फिर इतने टुकड़े करने का? ये बार बार जो टूटते रहे, तब कौन जिम्मेदार था? तब तो मुसलमान थे ही नहीं यहां पर। जब डिवीजन होता है, जब जमीन बंटती है, तो जिम्मेदार ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान। उस वक्त तो थे ही नहीं मुसलमान। उस वक्त तो जो लोग यहाँ के लोग रहते थे वो यहाँ के मूल निवासी थे, और तब ये डिसइंटीग्रेट होता रहा हिंदुस्तान। जी पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन तभी होते हैं, पॉलिटिशियन जिम्मेदार। जी आप दरमियान में नहीं कहें, पॉलिटिशियन तो जिम्मेदार, पॉलिटिशियन जब अंदर नफरतें होती है पॉलिटिशियन उभार देता है, अंदर नहीं होती तो पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर पाता। बात यह है, जिम्मेदार सिर्फ नफरत होती है, पॉलिटिशियन तो उस नफरत को उभार देते हैं। जिम्मेदार सिर्फ नफरत होती है। अगर नफरतें होती हैं तो सगे भाइयों के घर में दीवार खिंच जाती है। एक दीवार आधी ईंट की दीवार, दिल के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आधी ईंट की दीवार भाई को दे दें। वो आधी ईंट की दीवार के ऊपर झगड़ा होता है कि मेरी है या तेरी है। चारपाई के पलंग के दो पाए नहीं डाल सकते वहां पर, ये नफरत करवाती है, दीवार खिंच गई। लेकिन कभी अगर वो नफरत खत्म हो जाए तो हमने देखा है कि खिड़की भी खुलती है, फिर आना जाना शुरू हो जाता है। दीवारें जब खिंची थी खिड़की भी खुली थी। और अगर ये तो सिर्फ नफरत खत्म होने पे होता है, वो नफरत अगर मोहब्बत में बदल जाए तो फिर वो दीवार टूटती हुई देखी है हमने। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच की दीवार टूटी है, दीवारें टूटती हुई भी देखी है हमने। तो ये जितने टुकड़े कभी टूटे थे, नफरत की वजह से टूटे थे। जो कोई भी लोग यहां पर रहते थे, वो धर्म के हिसाब से कुछ भी मानने वाले हो, उनमें आपस में नफरतें हुई, डिसइंटीग्रेशन होता चला गया। तब कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, तब पॉलिटिशियंस नहीं हुआ करते थे, पुरानी हिस्ट्री की बातें हैं। लेकिन आपस में नफरतें होती हैं तो टूटता चला जाता है। ये नफरतें अगर मोहब्बत में बदल जाए तो फिर वापस दोबारा जुड़ भी सकते हैं, वो सारे पार्ट दोबारा वापस आ सकते हैं। तो हमारे सपनों का जो हिंदुस्तान है वो इतना छोटा सा नहीं है कि एक पाकिस्तान और बांग्लादेश जो 1947 में अलग हुआ था। हिंदुस्तान तो इतना बड़ा था, ये सारा हिंदुस्तान वापस आएगा तब हिंदुस्तान पूरा होगा। और आएगा जब मोहब्बतें दोबारा आएंगी। ये कैसे आए? पहली चीज तो वो थी जो मैंने सामने रखी थी इससे पहले, एक इवेंट, एक घटना आपको सुनाई थी कि यहां पर फ्लड्स आए और उस फ्लड्स के अंदर पूरी जमीन के अंदर सारे पापी डूब गए। सिर्फ मनु महाराज बचे, या मुसलमान उन्हें हजरत नूह कहते हैं, प्रॉफिट, वो बचे। और यहां की ट्रेडिशंस भारतवर्ष की कहती हैं सप्त ऋषि थे जो नौका पर साथ में थे उनके, अब वो बचे। मानवता वहां से शुरू हुई। उससे पहले अगर कोई ब्रह्मा ने किसी को सिर से पैदा किया था या ब्रह्मा ने किसी को पैर से पैदा किया था, हम डिस्प्यूट नहीं करते, मान लीजिए किया होगा। लेकिन वो अगर ब्राह्मण था तो पापी था, डूब गया उस फ्लड के अंदर। अगर शूद्र था तो वो भी पापी था, उस फ्लड में डूब गया। अब बचा कौन था? मनु महाराज बचे थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और सप्त ऋषि बचे थे जो उसके उस नौका के ऊपर सवार थे। आज सारी दुनिया उन ऋषियों की संतान हुई। अब ब्राह्मण कहां से आए और अब शूद्र कैसे बन गए? ये डिवीजन जो लोगों के अंदर अब कहां से हो गया? तो सबसे पहली बात एकता की यह है कि हम अगर हिस्ट्री के अंदर बैक वापस जाते हैं तो फिर इन्हीं पुराणों की, इन्हीं किताबों की हिस्ट्री हमें यह बताती है कि दुनिया सारी, वर्ल्ड सारी, दुनिया के सारे इंसान आज ऋषियों की संतान है। इनमें से कोई जन्म से कोई छोटा नहीं है, जन्म से बड़ा नहीं है।
यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए पहला पॉइंट के सबका खून एक है और सब एक माँ बाप की संतान है, जो वहां से चले आ रहे हैं और शुरू से। नंबर 1, कंक्लूजन के अंदर, ये कंक्लूजन मैंने पहले कह दिया, कुछ समान परंपराएं हैं, कुछ सिमिलर ट्रेडिशंस है, मैं वो रखना चाहता हूं साथ में। देखिए, ये देखा होगा आपने, मुसलमान जितने यहां पर बहुत से हैं जानते हैं कि कहीं जब तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, when they go on तीर्थ पिलग्रिमेज, हज के लिए जाते हैं, तो दे शेव देयर हेड्स, दे गेट देयर हेड्स शेव्ड, सर मुंडवाते हैं, और नहीं मुंडवाए तो थोड़ा सा बाल काट लेते हैं। वो जो अटायर होता है, जो कपड़े पहनते हैं, वो बिना सिले हुए होते हैं। 3 चीजें हैं यहां पर, और पैरों में चप्पल नहीं है। ये चप्पल की परमिशन दे दी गई है अब, वरना ओरिजिनल या आइडियल ऑर्डर ये था कि कुछ नहीं पहनेंगे, नंगे पैर होंगे। सनातन धर्म के अंदर एंशिएंट टाइम से यहां पर हिंदुस्तान के अंदर यही होता चला आया है कि तीर्थ यात्रा के वक्त वो सिर मुंडवाते थे, वो बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे, और वो अपनी सारी यात्राओं के लिए नंगे पैर जाते थे। तो एंशिएंट टाइम से होता चला आया है, यही ट्रेडिशन वहां सऊदी अरब के अंदर दी जा रही हैं। दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं है कि उनको जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी कि इस चीज की वो नकल कर लें। भाई सिले हुए कपड़े पहनवाएं वहां पर, इसकी नकल करने की उन्हें क्या जरूरत थी। सोर्स एक होगी, ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ये एक ही होंगी, जो यहां पर भी आई होंगी, जो वहां पर भी आई हैं। इसलिए ये ट्रेडिशंस जो है ये एक हैं। हम इससे और आगे चलते हैं। काबे का तवाफ करते हैं लोग, सरकम एम्बुलेशन, परिक्रमा, काबे की परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा यहां पर मंदिरों की भी की जाती है। ये परिक्रमा जो है यहाँ, ये ट्रेडिशन यहां पर चली आ रही थी, ये यहां पर भी मौजूद है जो परिक्रमा है। तो ये ट्रेडिशंस जो है, रिलीजियस ट्रेडिशंस कैसे चली आ रही हैं, जो कुछ मिलती जुलती हैं। अभी बड़ी दूरियां हो गई, लेकिन कहीं पर मूल में कुछ चीजें एक थी जो यहां पर अब मिलती जुलती हैं, जिसे लोग भूल गए। मैं कुछ और चीजें रखना चाहता हूं। वननेस इन बेसिक्स। इस्लाम किसी विशेष धर्म का नाम नहीं है। आज ऐसे ही माना जाता है इस्लाम इज ए प्रॉपर नाउन, आज ये कहा जाता है इस्लाम वाज एन एडजेक्टिव, जो कुछ कुरान ने कहा था। वन हु हैड सरेंडर्ड हिज विल टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड, अपनी मर्जी खत्म करने के बाद संपूर्ण आत्मसमर्पण जिसने कर दिया वो मुस्लिम था। अब मुस्लिम के घर मुस्लिम पैदा होता है, चाहे उसने अपनी विल को सरेंडर किया हो या नहीं किया हो। तो ये सरकारी रिकॉर्ड में है, करोड़ों यार वो मुस्लिम जो हैं, ईश्वर की सूची में मुस्लिम नहीं होंगे अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। तो इसने, इस्लाम के और भी बहुत से नाम थे, गुणात्मक नाम, जो एडजेक्टिव्स थे, जो कुरान ने दिए हैं। एक नाम उसमें से, अनदर नेम विच कुरान हैज गिवन फॉर इस्लाम इज दीन क़य्यिम। छोटी सी आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये इस्लाम जो है दीन क़य्यिम है। अब ये वर्ड क़य्यिम जो है, अरबी का वर्ड दीन इज द सिनोनिम ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म। और क़य्यिम जो है वो अरबी के अंदर कहते हैं वो जो स्थापित, कायम, इस्टैब्लिश्ड हो, हमेशा से, जो हिलता नहीं हो, कायम उसे कहते हैं कि जो हमेशा से कायम हो, हमेशा से इस्टैब्लिश्ड हो और जो कभी बदला नहीं हो। तो दीन क़य्यिम जो हमेशा से चला आ रहा है, उसको संस्कृत जबान में कहते हैं सनातन धर्म। सनातन माने सदा से सीधा चला रहा, और दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मजहब को नहीं। दीन का पर्यायवाची या दीन का सिनोनिम है धर्म। तो ये नाम भी नहीं बदला, ये नाम इस्लाम ने दिया कि इस्लाम का एक नाम है दीन क़य्यिम, और यही नाम जो है ये सनातन धर्म, दीन क़य्यिम का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है सनातन धर्म। सिर्फ लैंग्वेज बदल रही है, नाम भी नहीं बदला धर्म का। तो एंशिएंट टाइम से जो नाम चला आ रहा है, इस्लाम ने उसका नाम भी नहीं बदला, दीन क़य्यिम। कंक्लूजन ये है कि इनका नाम एक है। फिर इस्लाम का एक मूल मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। देयर इज उसकी जो मेन लाइन है, पहली लाइन वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा मालिक नहीं है, उपासनीय नहीं है, गॉड नहीं है, ये इस्लाम कहता है। और इसे उसका कहते हैं कि ये दिस इज द जिस्ट या सार और जिस्ट ऑफ द होल कुरान। ये बात जो है वेदास का सार कहलाता था, और ये सार एक और आपके सामने है। इसका नाम था ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन। ये टाइटल का नाम भी नहीं बदला, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म एक निराकार परमेश्वर, और सूत्र को अरबी में कलमा कहेंगे, कलमा खुदा या ब्रह्म सूत्र।
कि द ब्रह्म इज वन, देयर इज नन अदर, नहीं है, नहीं है, नॉट द लीस्ट, जरा सा भी कोई और नहीं है। तो इसका धर्म का नाम नहीं बदला, जो उसका सार है, जो कलमा है, जो उसका जिसे कलमा कहते हैं, उसका नाम नहीं बदला, टाइटल। और फिर वो जो कुछ कह रहा है कलमा या जिसे हमने ब्रह्म सूत्र, वो चीज वो जिस भी नहीं बदला। यही चीज जो है ये दुनिया के सारे रिलीजन्स ने बताई थी। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक, असल में बेसिकली मैं लेकर चला हूं, यहाँ पर समय नहीं है कि मैं सबको साथ में लेकर चल सकता, तो इसलिए सिर्फ मैंने इस्लाम और सनातन धर्म की चीजें ली हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। यही कलमा सिर्फ 2 शब्दों के अंदर गुरु नानक देव जी ने दिया था, एक ओंकार, इसी के अंदर आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो उस कलमे की डिटेल जो है वो पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भरी पड़ी है, जिसमें सिर्फ एक मैंने यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर दिया है। खसम की नजरी दिल ही पसंदे जिन्हीं करी एक धियाइया, कि ये उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा उन लोगों, गॉड्स ग्रेस इज अपॉन देम एंड दे आर डियर टू हिज हार्ट हु मेडिटेट अपॉन ओनली वन, जो सिर्फ एक का ध्यान करते हैं। यही शिक्षा जो थी यही बाइबल की थी, कि बाइबल ने कहा कि वहां यहाँ पे यीशु को कुछ लोग, हमारे क्रिश्चियन भाई जो है वो यीशु को भी गॉड कहते हैं, और कहते हैं बराबर का गॉड, गॉड के बराबर का। तो यहाँ बाइबल के अंदर उन्होंने खुद कहा, जीसस आंसर्ड हिम, द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट्स इज हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, द लॉर्ड आवर गॉड, जीसस के गॉड भी। और जीसस ने ये कहा, ये दूसरी जगह का रेफरेंस है, ये न्यू टेस्टामेंट का, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, नो वन इज गुड बट गॉड अलोन। यानी एक की बात वो करते थे। तो यही बाइबल ने कहा, यही ग्रंथ साहब की पूरी शिक्षा इसी के ऊपर है, यही सनातन धर्म ने कहा था। इसकी जो डिटेल है आगे, तब ये कंक्लूजन इसका जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा मूल मंत्र जो है वो एक है, यही कलमा, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ओंकार और वन गॉड वाली बात जो है, ये समानता हमारी चली आ रही है। मैंने पहली बात क्या रखी थी, आपस की ह्यूमैनिटी के सबका खून एक है। जो यहाँ पर बहुत सी जातियां बन गई हैं, ये जातियां खुद उन्हीं धर्म, उसी धर्म के स्क्रिप्चर्स और उनकी जो मान्य किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उसके अनुसार ये जातियां गलत हैं। इसलिए कि सारी दुनिया तो ऋषियों की संतान है, जो महाजल प्लावन वाले मनु से चले अब। और उसके बाद ये दूसरी बात थी कि फिर मान्यताओं के अंदर मूल मान्यताएं भी एक हैं, बेसिक बिलीफ्स के अंदर भी कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। ये बेसिक बिलीफ्स जो है, मैं बहुत एक छोटी सी बात में यहाँ पे रख रहा हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है, यहाँ भारतवर्ष के अंदर कहा जाता है कि ये 3 चीजें हैं, इनमें से कोई एक रास्ता ले लें, मुक्ति हो जाएगी फॉर सेल्वेशन। आइदर यू नीड भक्ति और यू नीड ज्ञान, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। इस्लाम इन तीनों की बात करता है। भक्ति इज सबमिशन, अब उस एक के लिए, लेकिन सबमिशन फॉर वन, उस एक के लिए टोटली अपने आप को सबमिट कर दें, यही भक्ति है। इस्लाम इन तीनों की बात करता है। डिवाइन गाइडेंस, ज्ञान क्या चीज है? ये ज्ञान कोई यहां से, दुनिया से, इधर से सीखे हुआ ज्ञान नहीं, ज्ञान तो वो है जो उससे मिला है, डिवाइन गाइडेंस। ये डिवाइन गाइडेंस का प्रिंसिपल इस्लाम ने प्रॉफिटहुड दिया, इसे रिसालत कहते हैं। और कर्मों की और डीड्स, इन डीड्स का एक रिजल्ट निकलता है। तो यही चीज जो है, ये भक्ति बेसिकली तौहीद है, और ये ज्ञान मार्ग जो है, ये बेसिकली जो कि डिवाइन गाइडेंस है, इसे इस्लाम में रिसालत का प्रिंसिपल कहते हैं, प्रॉफिटहुड का। और इन डीड्स का एक फल मिलता है, ये डीड्स अपने रिजल्ट लाती हैं, और यही प्रिंसिपल इस्लाम के अंदर आखिरत का प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये जो अलग अलग टुकड़ों में रखा हुआ था कि भक्ति, या तो भक्ति मार्ग हो तो उससे मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान मार्ग हो तो मुक्ति, इस्लाम ने इन तीनों को लिया है और तीनों को समेटा है। सिर्फ एक दूसरे से हम को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ समान आधार और कुछ कॉमन ग्राउंड्स। ये ऋग्वेद, इस मंत्र के ऊपर, ये लास्ट मंत्र है ऋग्वेद, लास्ट सूक्त है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, उन 10वें मंडल के अंदर 191 सूक्त हैं, 191, और उसके अंदर कुल 5 मंत्र हैं, उनमें से ये तीसरा मंत्र है जिसका ये ट्रांसलेशन है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम। हमारे let us gather on one mantra, common mantra। आओ हम सब, may our mantra be alike, उसकी समिति समानी, may our assembly be common, समानम मनः सह चित्त में शाम, may our minds be alike, और our psyche, हमारे सोचने का अंदाज भी एक ही हो। ये कॉल दी थी यूनिटी की इस सूक्त को, जिसके अंदर ये मंत्र है। वेद के अंदर संगठन सूक्त भी कहते हैं, इसे संज्ञान सूक्त भी कहते हैं। तो ये ऋग्वेद अंत हो रहा है इस बात के ऊपर कि सब लोग जो है सबके समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो जाएं। इसी समान मंत्र की बात कुरान ने भी की थी। कुरान ने भी आह्वान दिया था, और कुरान ने कहा था, कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ये आगे और आयत आ रही है, वो आगे आएगी, कि इनसे कह दो, हे पूर्व ग्रंथ वालों,
Say, O people of the book, come towards such a mantra, saman mantra, kalma sawa, come towards such a mantra which is common between you and us. और कुरान ने उसे डिफाइन भी किया था कि वो समान मंत्र क्या है. अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैया, that we shall be bondsmen to none but one God and that we shall associate no partner with him. कि हम कोई साजी उसका नहीं बनाएंगे और सिर्फ एक जो है वो उसके हम बंदे होंगे, उसकी बंदगी करेंगे. तो ये कहा था कुरान ने कि समान मंत्र ये है, ये हमारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी है. ये पिछली सारी किताबों वालों से कहो कि आओ इसके ऊपर हम एकत्रित हो जाएं और हम इकट्ठे हो जाएं. ये समान मंत्र की डिटेल वेद में भरी पड़ी है. मैं वो दिखाना चाह रहा हूं. वेद ने शुरू में तो खाली एंड खत्म होते होते तो इतनी बात कही कि समानम मंत्र समानी मंत्रा समिति समानी समानम मना चित्त में शाम के समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो. समान मंत्र की डिटेल कुरान ने जो कुरान ने बताई वो डिटेल वेद ने जगह जगह दी है. स एश एक विदेक एव, अथर्ववेद का कांड नंबर 13, इसका सूक्त नंबर 4 और इसका मंत्र नंबर 12 कि ओनली ही बाय हिमसेल्फ अलोन, ओनली ही इज प्रेजेंट बाय हिमसेल्फ अलोन. एक एव नमस्सो विश्वविद्या, वो जो एक है हम सब सिर्फ उस वही एक सारी सृष्टि के द्वारा उपासना योग है. ही अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप. सिर्फ यह एक तो मुष्टु ही, सिर्फ उसी के गुणगान और सिर्फ उसी की पूजा और सिर्फ उसी की उपासना, सिर्फ उसी की स्तुति जो है वो जो एक है. खाली इतनी बात नहीं कि वो एक है, एक तो है, कहा जो एक है स्तुति सिर्फ उसी की करनी है, किसी और की नहीं करनी है. यहाँ किसी और की नहीं करने की बात नहीं आई. लेकिन ये मंत्र है ऋग्वेद 8:1-1, यानी मंडल नंबर 8 उसका सूक्त नंबर 1 और उसका मंत्र नंबर 1. वहां कहने नहीं उसके सिवा किसी और की नहीं करनी. माँ चिदन यद विशंसत. सिर्फ इतनी बात नहीं है कि यह एक इत्तुमुष्टु ही, कि जो एक है उसी की करना. ये भी कहा कि उस एक के सिवा दूसरे की मत करना. कुरान फिर ये बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल प्रेयर, तस्ते भक्तिवांसा श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त हों, मे वी बी द बॉन्ड्समैन टू यू अलोन. और फिर वेदास ने ये एक मंत्र है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, मंत्र नहीं है पूरा. इसके अंदर बहुत से देवी जो फुल मंत्र है जिसे आज देवी देवता माना जाता है, बहुत से देवी देवता यहाँ पर वेदों ने कहा था कि एक ईश्वर के गुणों के नाम थे. उसमें ब्रह्मा का नाम आया, उसमें शिव का नाम, रुद्र का नाम आया, उसमें विष्णु का नाम आया और बहुत से नाम वहां पर गिनाए, मातरिश्वा. और फिर उसके बाद कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, कि वो तो एक है लेकिन उसको विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं. उसी एक को अलग अलग नामों से पुकारा है उसके गुणों के आधार के ऊपर, वरना वो एक है. अब एक मुसलमान जब कहता है कि वो खालिक है, वो रब है, वो मालिक है, वो ये जो अलग अलग नाम लेता है तो दुनिया में कोई नहीं समझता कि अलग अलग को पुकार रहे हैं. ऐसे ही ब्रह्मा उसी एक का नाम था, ये विष्णु उसी एक का नाम था, ये शिव उसी एक का नाम था. ये अलग अलग उसके गुणों के नाम थे. इन गुणों को समय के साथ आकार दे दिए गए और स्वतंत्र से इसके देवी देवता बना दिया गया, वरना ये किसी उसी एक के अलग अलग गुणों के नाम थे. अब इन्हें बोला जाता है तो ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये किसी अलग अलग के नाम है और अलग अलग उनकी फिर पूजाएं करने लगते हैं. कंक्लूजन ये है कि धर्म नेवर चेंज्ड. धर्म शुरू से एक रहा, लेकिन लोग मूल ग्रंथों से कटे. लोग जो सनातन धर्मी हैं वो वेदों से कट गए. उनके घरों में भी नहीं होते, उन्होंने दर्शन भी नहीं किए होते. उनमें से मेजॉरिटी ने, अक्सरियत ने उसे देखा भी नहीं होता. कुरान शरीफ मुसलमानों के घर में होता है लेकिन वो ऐसे पाठ करते हैं और ऐसे पढ़ते हैं कि उसका अर्थ नहीं जानते. तो फिर ये भी होने और नहीं होना इन दोनों का बराबर है, समान है और एक जैसा है. तो ये धर्म असल में अगर हम मूल ग्रंथों से लें तो फिर वो धर्म एक ही जगह जाकर एक ही जगह आता है. फिर वहां पर धर्म परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं होती. हम ये कह सकते हैं कि अब वेद ये कह रहे हैं तो आप वेद के आधार के ऊपर आप सच्चे सनातन धर्मी क्यों नहीं बनते? आप इस वेद की शिक्षा से अलग क्यों हैं? ऐसे ही ये जितनी बातों को मानते चले आ रहे हैं मुसलमान, वो सारी ठीक नहीं है. आप कुरान को रेफर क्यों नहीं करते? अपने अपने इमाम, अपने अपने गुरु और अपने अपने शेख, उनसे जो चीजें लेते हैं उसके ऊपर मतभेद होते हैं और इख्तिलाफ होते हैं. तो लोगों ने उस मूल को लेना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से फिर बहुत से मतभेद आपस में हो गए, बहुत से समुदाय बन गए और वो जो एक धर्म था वो बहुत से अलग अलग मतों के अंदर विभाजित हो गया. वो कहलाने लगे धर्म. ये धर्म नहीं है, ये मत हो गए, इज्म हो गए ये. और फिर जब ये ऐसा हो जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ये इसको मैं सिर्फ ब्रीफली रखूंगा. जब वो अगर इन सारी चीजों को लोग समझ लें, इसको लोग मान लें, फिर वैसे ही एक ईश्वर और एक खून, इसका एकत्व कायम हो जाए, स्थापित हो जाए, तो कहा जाता है कि फिर सतयुग आएगा. अभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, समुदायों में बटे हुए, ये कलयुग चल रहा है. यहाँ पर हमारे यहाँ ये सतयुग की बात कुरान ने भी कही थी, ये सतयुग के बाद इस्लाम ने भी कही थी कि सतयुग आएगा. सतयुग, सत इस्लाम, उसके अंदर अरबी जबान के अंदर सत कहते हैं हक को, और युग
दौर हक, ये दौर हक की बात तो इस्लाम ने भी की है, यहां पर सतयुग कहलाता है, इस्लाम उसे दौर हक कहता है। और हमारी हदीसें और कुरान शरीफ कहता है कि दौर हक आएगा, हमारी हदीसें कहती हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह कहा कि वो दौर हक आएगा, लोग बिगड़ जाएंगे लेकिन फिर सतयुग आएगा। तो अब सतयुग खाली ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नाम सुनने के बाद हम यहाँ पे ये कहें कि ये हिंदुओं की चीज है और हिंदू मानते चले आ रहे हैं कि कलयुग गुजरने के बाद सतयुग आएगा। बात तो ये है कि सतयुग आएगा, लेकिन यहां जो कुछ कहा गया है उसके विषय में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। इन शॉर्ट, यहां के स्क्रिप्चर्स में या खासतौर से मैं स्पेशली सिर्फ वेदास की बात कर रहा हूं। वेदास में कहा गया था कि मैनिफेस्टेशन ऑफ अग्नि जो है, अग्नि को प्रकट करना जरूरी है। अग्नि क्या है? अग्नि को प्रकट करना जरूरी है, तब तुम नेतृत्व करोगे सतयुग के अंदर। ये कहा था यहां के लोगों से। अग्नि के नेतृत्व, वो अग्नि क्या थी? वो अग्नि क्या स्थूल अग्नि है? अग्नि द फायर? लेकिन कहा था कि नहीं, श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि, अग्नि द ट्रांसेंडेंट सेज अग्नि, श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि। ये वेद के जो अब आगे 3-4 मंत्र आ रहे हैं, वो उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद एक एक अक्षर के साथ में पंडित श्याम शर्मा आचार्य जो बहुत बड़े, उन्होंने वेदों के अनुवादक हैं और गायत्री परिवार या गायत्री समाज के संस्थापक थे। ये ट्रांसलेशन या अनुवाद उनका है, इसके अंदर एक शब्द भी कहीं और से नहीं लिया गया। ये हिंदी का अनुवाद उनका है, इंग्लिश उसका मैंने किया है। श्रेष्ठ ज्ञानी अविनाशी कवि प्रदीप्ति युग देह वाली अग्नि को अरणि मंथन के द्वारा प्रकट करो। वेद ने कहा था कि अरणि मंथन से अग्नि का प्राकट्य होगा, और अग्नि को प्रकट करना बड़ा जरूरी था। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ा राज है वेदों के अंदर कि अग्नि को प्रकट करो। अग्नि क्या चीज है? वो अग्नि आग नहीं, यहां पे कहा गया था वेद ने कि ये अरणि मंथन। अरणि मंथन क्या चीज है? अरणि कहते हैं मिशाल को, जिसे हिंदी में मिशाल कहते हैं, अरणि उसे कहते हैं। और मंथन, मंथन है ब्रेन स्टॉर्मिंग, रिसर्च। तो ये था कि ज्ञान के आधार के ऊपर जब शोध होगा या रिसर्च होगी, तो उसके जरिए अग्नि का राज जो है, अग्नि प्रकट होगा। तो अग्नि के बारे में कहा गया था। ये वेद का एक जगह से और मंत्र है, और इसका हिंदी अनुवाद भी पंडित श्याम शर्मा आचार्य का है, मैंने उसका इंग्लिश कर दिया है। एताम विश्वपत्नीमा भरग्नि मंथाम पूर्वथा, के पहले पूर्व काल की तरह, लाइक इन द अर्लियर एज, वी शैल मेक अग्नि अपीयर बाय द शेकअप। हम मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट करेंगे, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए, रिसर्च के थ्रू अग्नि जो है वो सामने आएगी। मंथन उसे कहा गया था, ये अलंकृत भाषा थी। और अग्नि के लिए वेदों ने कहा था कि अग्नि जो है वो प्रकट कैसे होगी। अग्नि के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप वो है जो जब वो अग्नि साक्षात होके या प्रत्यक्ष होके या एम्बॉडीड इस दुनिया के अंदर नजर भी आएगी। ये ट्रांसलेशन फिर उन्हीं का है, पंडित श्याम शर्मा का, इसके अंदर कोई शब्द अलग से जोड़ा नहीं गया है। जिसमें कहा था यज्ञ अग्नि रस्म द्वितीय परिजात वेदा, के इन अग्नि के 3 रूप बताए हैं। मंत्र आप यहां पर देख सकते हैं, मैं दूसरे रूप की बात कर रहा हूं। उनका द्वितीय जन्म हम मनुष्यों के बीच हुआ, तब वो जात वेदा कहलाई। ये अग्नि का दूसरा रूप है। उससे पहला रूप जो है उसमें हम पहचान नहीं सकते, हम मनुष्यों के मध्य हुआ, और उसके बाद फिर कोई और तीसरा रूप है। ऐसे ही अग्नि के बारे में एक और, ये ऋग्वेद का 3:29-11 मंडल नंबर 3, उसका सूक्त नंबर 29 और उसका मंत्र नंबर 11, वहां पर इस दूसरे रूप के बारे में फिर ये बताया कि उस दूसरे रूप में पहले तो कहा था कि जब वो प्रकट होंगे, हम मनुष्यों के बीच प्रकट होंगे, तब वो जात वेदा कहलाएंगे। यहाँ पे कहा गया कि तब उनका नाम नराशंस होगा, और तब वो जब वो यहाँ प्रकट होंगे तब वो साक्षात होंगे, और तब उनका नाम नराशंस होगा। अब ये हमारे इसकी बात है कि हम इसके ऊपर शोध करें कि सतयुग जब आएगा तो वो अग्नि का राज जो है वो खुलेगा, तब उस सतयुग के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। उसके अंदर अग्नि का राज शोध के द्वारा खुलेगा, जिसके अंदर जब अग्नि यहां पर प्रकट होंगे तो वो उनका एक नाम नराशंस होगा, उनका एक नाम जातवेद होगा, उन्हीं का अग्नि का। तो इसके ऊपर ये हमारे आपस में बैठकर मिलने की जरूरत है कि हम सनातन धर्मी मुसलमान और दूसरे लोग बैठकर इस पर करें कि ये क्या है, और उनको हम समझ सकें, ताकि यहां पर सतयुग जो है उसको हम ला सकें। और आखिरी बात, फिर सतयुग कब आएगा? बहुत बड़ी बात है ये सतयुग का नाम बड़ा सुनते चले आ रहे हैं। दौरे हक आएगा बता दिया गया। सनातन धर्मी ट्रेडिशंस के अंदर हमारे यहाँ कुछ स्कॉलर, मतलब आर्य समाजी भाई, तो ये कहते हैं कि अभी बहुत साल हैं, करोड़ों साल हैं, 1 अरब साल से ज्यादा साल हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ और ग्रुप हैं, कुछ और सनातन धर्मी यहाँ पर ऐसे जो बहुत से अलग अलग समुदाय हैं, उसके अंदर बाज लोग कुछ और गणना अपनी रखते हैं सतयुग के विषय में। मतलब ये जो फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा कुमारी पीपल जो हैं, वो कहते हैं कि सतयुग
2036 से सतयुग स्टार्ट होगा। ये उनका कहना है, उनकी गणना है, मैं तो सिर्फ यहां पे इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको। और जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिनके हिंदूज के अंदर जो सबसे बड़ा रिफॉर्मर ग्रुप है यहाँ सनातन धर्मियों के अंदर, गायत्री परिवार या गायत्री समाज, उसके फाउंडर पंडित श्याम शर्मा आचार्य ने कहा 2000 के अराउंड आएगा सतयुग। 2000 के अराउंड का मतलब या आसपास का मतलब कुछ कम या ज्यादा। अब कम की बात तो खत्म हो गई, 2000 गुजर गया, लेकिन अगर 2050 गुजर जाता है तो वो 2100 हो गया, वो 22वीं सदी के करीब पहुंच गया। तो इसका मतलब उनकी गणना के अनुसार, उनकी गिनती के मुताबिक, पंडित श्याम शर्मा आचार्य के मुताबिक 2050 से पहले सतयुग आ जाना चाहिए। ब्रह्म कुमारी वाले कह रहे हैं 2036 एक ईयर उन्होंने फिक्स किया है। आर्यभट्ट बहुत यहाँ के पुराने साइंटिस्ट, बहुत भारतवर्ष के बड़े सम्मानीय, यहाँ बड़े प्रतिष्ठित साइंटिस्ट जो यहाँ के गुजरे हैं, उन्होंने फिक्स ईयर दिया है 2026, जिसमें पूरी उनकी गणनाएं हैं, पूरी उनकी कैलकुलेशन देखिए 2026 कैसे दिया है उन्होंने कि सतयुग स्टार्ट होना है 2026 से। ये आर्यभट्ट का कहना है, जो इंडियन साइंटिस्ट थे एंशिएंट, और इस्लाम भी यही कह रहा है। मुसलमान इसके बारे में कम मालूम होगा, यहां मैं डिटेल आपके लोगों के सामने रखने का वक्त नहीं है, समय नहीं है, कि प्रॉफिट मोहम्मद से 1500 साल बाद सतयुग स्टार्ट होगा। अब इसमें दो डेट्स आती हैं, उनकी बर्थ से अगर 1500 साल बाद तो 2026 जो मैच कर रहा है आर्यभट्ट की गिनती से, लेकिन यहां कंडीशनल है। ये कहा था कि उसके लिए सतयुग आपको लाना होगा, आपको कुछ करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कैलकुलेशन जो है वो उनके प्रॉफिटहुड से होगी। जो 40 साल की एज में प्रॉफिट शुरू हुई थी तो वो 40 साल आगे बढ़ जाएगा तो 2026। और अगर वहां पर नहीं आया तो वो आपकी गलती होगी, वो हमारी गलती होगी कि नहीं आ सका, दौरे हक हम नहीं ला सके, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा और नेक्स्ट डेट आएगी 2066। तो इस्लाम ने ये दो डेट्स दी थी। ये डेट पहली 2026 विच इज पॉसिबल, ये आर्यभट्ट की दी हुई है, और ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1500 साल बाद की तारीख का साल है, 2026 उनकी पैदाइश थे। तो ये जो तारीख दी थी ये उन्होंने दी थी। तो ये यहाँ पर मैच कर रही है इस्लामी ट्रेडिशन और जो आर्यभट्ट ने बताया था, और जो पंडित श्याम शर्मा ने कहा था कि 2000 के कुछ बाद या पहले की बात तो गुजर गई। ये सारी चीजें जो है वो मैच करती हुई चली आ रही हैं। अब हमें ये देखना है कि सतयुग लाने के प्रयास में हम लोग कितनी कोशिश कर सकते हैं साथ में। लेकिन ये देखना होगा, अपने मूल ग्रंथों की तरफ वापस लौटना होगा। हमें ये समझना होगा इस बात को कि ये धर्म नहीं है जिनके ऊपर चल रहे हैं मुसलमान, ये धर्म ये दीन नहीं है, ये धर्म नहीं है जिसके ऊपर चल रहे हैं सनातन धर्मी। जब अपने मूल ग्रंथों से कटे हुए हैं तो फिर यहाँ पर बहुत से समुदाय बन गए और वहां पर भी बहुत से समुदाय बन गए जिनमें आपस में मतभेद होते हैं। तो जब तक हम मूल की तरफ वापस नहीं लौटे, मूल ग्रंथों की तरफ वापस नहीं लौटे और मूल शिक्षाएं जब तक हम वहां से नहीं लेंगे तो फिर दौरे हक नहीं आएगा, तो सतयुग नहीं आएगा। ये सतयुग आना मुमकिन है, ये पॉसिबल है, ये संभव है, कहा गया था 2026 के अंदर। तब देखिए हमारे करने की बातें हैं कि हम इसका प्रयास करें और हम इसकी कोशिश करें, तो ये पॉसिबल है, तब ये मुमकिन है, और वरना ये हट भी सकता है और 40 साल आगे जा सकता है और 40 साल डिले भी हो सकता है। एक कुरान की बात याद दिलाना चाहता हूं, विशेषकर खास तौर से यहाँ जो लोग मुसलमान मौजूद हैं उनको, बाकी तो नॉलेज के लिए तो सबके जितने लोग हैं, कि एक सिद्धांत दिया था, एक उसूल दिया था कुरान ने, वाम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़। तुम्हें मुसलमानों को नहीं, दुनिया के इंसानों के लिए बेनिफिशियल बनना है, लाभदायक बनना है। जो दुनिया के इंसानों के लिए लाभदायक होता है वो जमीन पर रहता है, वरना पीछे कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है। जमीन पर से डायनासोर खत्म हो गए, इंसानों के लिए फायदे की चीज फायदे के नहीं थे। यहां जमीन पर पहले आग ही आग थी, वो हटा दी गई इसलिए कि मानव को यहां पर लाना था। वो इंसान उसके अंदर, मानव जाति उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकती थी। यहां पर इंसानों के अंदर जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, कुछ समय गुजरता है लेकिन उनको हटा दिया जाता है। तो ये खूब समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान ये कह रहा है कि ये काफी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है कि आपसे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे। ये काफी नहीं है कि आपसे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे। अगर आपको रुकना है, आपको ठहरना है, आपको बाकी रहना है, तो आपसे दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए। और ये सिद्धांत है, जब ये उसूल दिया है कुरान ने, तो उसूल सबके लिए है, सार्वभौम होते हैं उसूल जो इस ग्रंथों के होते हैं। इसके अंदर कहीं ये बात नहीं है कि मुसलमानों के लिए, सब जो इस उसूल को ले लेगा, अगर इस उसूल को ईसाई लेंगे तो वो जमीन पर रुकेंगे, दुनिया को अगर उनसे फायदा पहुंचेगा। अगर दुनिया को सिखों से फायदा पहुंचेगा तो वो यहां पर टिकेंगे, अगर दुनिया को सनातन धर्मियों से फायदा पहुंचेगा तो वो यहां पर टिकेंगे, दुनिया को जब मुसलमानों से फायदा पहुंचेगा तो वो यहां पर टिकेंगे। ये और वरना हटा दिए जाएंगे।
फिर एक बात और कुरान ने कही थी, इसकी तरफ और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं सबको, और खास तौर से दोबारा कह रहा हूं, खास तौर से मुसलमानों को, कि कुरान ने कहा व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई का काम जहां भी हो कोऑपरेट करना, चाहे जो कर रहा हो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ज्यादती का काम, ट्रांसग्रेशन का काम, ज्यादती गुनाह का काम, पाप का काम जहां हो उसके साथ मत देना, चाहे तुम्हारे अपने हो उनका साथ मत देना। और जहां भलाई का काम हो रहा हो, चाहे तुम्हारी नजर में वो अपने नहीं हो, उनका खाली ये नहीं का अच्छा कहना, तावनु कोऑपरेट करना है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ जो मुसलमान मौजूद हैं, स्वामी अग्निवेश ने गुलामी को खत्म करने के लिए, बच्चों को आजाद कराने के लिए जगह जगह, या शराब बंद करने के लिए, नशा बंदी करने के लिए उन्होंने एक मार्च किया, पूरे भारत का दौरा किया। ये खत्म होना चाहिए, ये बुराइयां खत्म होना चाहिए, इस्लाम कहता है या नहीं कहता है? जो कुछ उन्होंने किया ये अच्छा काम था या नहीं था स्वामी अग्निवेश का? कितने मुसलमान साथ चले? कुरान ने कहा था कि कोऑपरेट करना, ये नहीं कहा था कि अच्छी, ये लिखकर भेज देना कि अच्छा किया आपने, तो ये लिखकर भी नहीं भेजा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारे किसी आलिम ने उनको लिखकर भेजा किसी दारुल उलूम से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ शबाना आजमी निकली जिन्हें आप मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते, और मुसलमानों के जो थे प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, वहां से उन दारुल उलूमों से, उन मदरसों से लोग क्यों नहीं उनके साथ देने के लिए निकले? ये काम तुम्हारा था, तुम्हें करना था। अगर स्वामी अग्निवेश कर रहे हैं तो तुम्हें ताउन देना था। ताउन अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई का काम जो कोई भी करे उसका ताउन करना है, उसको कोऑपरेट करना है, उसका साथ देना है। और बुराई का काम या ज्यादती का काम जो कोई कर रहा हो, चाहे वो खून से तुम्हारा अपना बनता हो, चाहे वो समुदाय के हिसाब से तुम समझते हो कि हमारे धर्म का ये धर्म है नहीं, समुदाय है, ये अलग अलग मत हैं, तो चाहे इसके, लेकिन अगर ज्यादती का काम है तो उसका साथ नहीं देना है। उसूल तो, सिद्धांत तो ये दिया था कुरान ने। जब इससे अलग हटेंगे तो कॉम्युनलिज्म आ जाएगा। कॉम्युनलिज्म की सबसे पहली डेफिनेशन, फिरका परस्ती की सबसे पहली डेफिनेशन हिस्टोरिकली जो अवेलेबल है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने दी थी, और उससे ज्यादा शायद एक्यूरेट डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या कॉम्युनलिज्म या फिरका परस्ती या असबियत क्या ये है कि हम अपने लोगों का जो हमारे हैं हम उनका साथ दें, तो क्या ये कॉम्युनलिज्म है, क्या ये असबियत है? उन्होंने कहा नहीं, कॉम्युनलिज्म ये है कि तुम ज्यादती में उन लोगों का साथ देने लगो जिन्हें अपना कहते हो, जुल्म और ज्यादती में उनका साथ नहीं दोगे, नहीं तो कॉम्युनलिज्म हो जाएगा, नहीं तो फिरका परस्ती हो जाएगी। और इस्लाम ने कहा कि जो फिरका परस्त है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस है कि जो फिरका परस्त है वो हम में से नहीं है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। और फिर वक्त हो गया है, और आखिरी बात, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी चीज जहां पर मिले ले लो, जहां मिले लीजिए, ये हदीस है। अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन, हिकमत की बात जहां कहीं मिले ये समझ लेना तुम्हारी खोई हुई चीज थी। हैसु वजदा फहुवा अहक्कु बिहा, जहां मिले तुम्हें उसके राइटफुल ओनर हो, ले लो उसे कि हमारी है। अच्छी चीज जिस जगह पर मिले। अब उसके मुखालिफ बहुत सी चीजें बना ली गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दूसरों की चीज लेना अच्छी बात नहीं है, ऐसी चीजें कही जाने, दूसरों की नहीं है, तुम्हारी अपनी है, अगर तुमसे खो गई तो ले लेना। एक ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर, ये लंबा है लेकिन मैंने इसकी 4 लाइनें यहां पर ली हैं। ये शांति पाठ कहलाता है, इसको कहा जाता है। बड़ी प्यारी बातें हैं। तो फिर अगर अच्छी बातें आपने कुरान शरीफ से मैंने सुनाई और आपने तालियां बजाई, तो ये भी अच्छी बातें हैं और हमारी है, ये भी हमारी अपनी है। जहां से जो चीज मिले वो अच्छी बातें हैं, वो हमारी अपनी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बड़ी प्यारी बातें हैं कि सब सुख, हम जितने हैं सारे के सारे सुखी हो जाएं, सारे के सारे दुनिया के अंदर निरोगी हो जाएं, और सबको हम अपने भाइयों की तरह देखें, अपने भाई की तरह समझें। तो इसके ऊपर ये सिर्फ ये बताना था कि ये सार्वभौम एकता की बातें, मोहब्बत की बातें तो जगह जगह बिखरी हुई हैं, वहां पर अगर मिल रही हैं तो भी हमारी हैं, लेकिन इन उसूलों को तो कम से कम आपको लेना है, जो मूल ग्रंथों ने या बेसिक स्क्रिप्चर्स ने बताए थे, उनको आपको लेना है और उसको आपको अपनाना है। और फिर उसके बाद उस मूल ग्रंथों से अलग हो, उससे टेस्ट करें कि क्या चीजें कहां कहां डाइवर्जन हो रहा है। क्यों वेदों की शिक्षाओं जो है वो कट गए, वेद से क्यों कट गए सनातन धर्मी, कहां चले गए उनके जीवन से। कुरान शरीफ जो है उनकी जिंदगी से मुसलमानों की कहां पर अलग हट गया। हम उस मूल ग्रंथों के ऊपर वापस आएंगे तो सतयुग आएगा, दौरे हक आएगा, वरना सतयुग फिर 40 साल और आगे जाएगा, और फिर 40 साल कलयुग के बहुत अच्छे नहीं होते। इस वक्त भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, हालात बिगड़ते चले जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं होते।
वो 40 साल कलयुग के बहुत बुरे आएंगे उसके बाद, 2026 के बाद, अगर आपकी समझ में नहीं आया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दे, मुझे भी दे, आप सबको भी दे, और सतयुग लाने के प्रयास में हम सब एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ें और चलें और एक दूसरे के भलाइयों के अंदर साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? ऐसी क्या लिखा है आगे? ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा? ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा? काफिर वर्ड का पहले मीनिंग सुन लीजिए। बात तो यह है कि जब कुरान से दूर हैं, उसकी भाषा से भी दूर हैं, तो फिर लोगों ने जगह जगह अपने अर्थ बना लिए हैं। काफिर शब्द का पहले अर्थ सुन लीजिए। 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं काफिर के। काफिर का एक मतलब है, एक अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग। काफिर का मतलब है, नंबर 1 बात, मना करने वाला, इनकार करने वाला, वन हु डिनाइज। किस चीज का इनकार, इसकी हम बात करेंगे। नंबर 2, दूसरे अर्थ है काफिर का अर्थ है वन हु कंसील्स, छुपाने वाला। क्या छुपाने वाला, इसकी बात को करेंगे। नंबर 3, काफिर का अर्थ है अकृतज्ञ, नाशुक्रा, अनग्रेटफुल। ये 3 अर्थ हैं काफिर के। एक एक करके ले लीजिए तीनों को। नहीं मानने वाला या इनकार करने वाला, किस चीज को नहीं मानने वाला? आप कहते हैं इस्लाम को नहीं मानने वाला। इस्लाम क्या चीज है? इस्लाम ये दावा करता है, या आप भी कहते हैं इस्लाम पीस का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, या नहीं करते दावा आप? ये या उस शब्द के अर्थ भी हैं ये। तो फिर अगर आपने इस्लाम को किसी को ऐसे बता दिया है, ऐसे समझा दिया है, खाली जबानी नहीं, साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है अपने कर्मों से भी कि ये शांति है, ये सलामती है, अगर आपने लोगों को बता दिया है और समझा दिया है, फिर कोई मना करता है तो हम कह सकते हैं इन्होंने नहीं माना। किसी को आपने बताया ही नहीं, कहा ही नहीं, और उसके बाद कह रहे हैं ये मना कर रहा है, तो ये बड़ी एब्सर्ड बात है। मैं अगर आप यहां पर बैठे हुए भाई से मैं कहूं कि थोड़ा सा इससे, यहां पर ये रखा हुआ है, इसका प्रोजेक्टर का रुख ऊपर कर दीजिए, ये मना कर दे, मैं नहीं कर रहा, तो जब मैंने कहा तभी तो मना करेंगे। मैंने इनसे कहा ही नहीं कि जरा ऐसा कर दीजिए, और दूसरों से शिकायत कर रहा हूं कि ये कर नहीं रहे, ये मना कर रहे हैं। मना कैसे कर देंगे जब तक मैंने नहीं? तो मना करना तो होता ही उसके बाद है, जब कोई बात कही जाती है। अगर आपने इस्लाम को बता दिया है और ऐसे बता दिया है कि ये शांति का धर्म है, और ये खाली दावा नहीं किया बल्कि सिद्ध भी कर दिया है, फिर कोई अगर मना करता है तब कोई अधिकार बनता है कह सके। उससे पहले तो अधिकार ही नहीं किसी को भी काफिर कहने का। नंबर 1, ये पहले मीनिंग थे। दूसरे मीनिंग, काफिर का अर्थ है छुपाने वाला। क्या छुपाया, क्या चीज छुपाने वाला? अगर मुसलमानों का यह दावा है कि उनके पास बहुत कीमती चीज है, उनके पास मुक्ति का मार्ग है, उनके पास वो मार्ग है बिल्कुल सच्चा सच्चा मुक्ति का मार्ग, और वो उन्होंने अगर दूसरों को नहीं बताया तो छिपाने वाले तो वो हुए। जिसके पास नहीं होगा वो क्या छुपाएगा, जिसके पास होगा वही तो छिपाएगा। तो फिर छिपाने वाला कौन होगा? जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर अगर कहीं पर वेदों से लोगों को काट दिया, ईश्वरीय वाणी से लोगों को काट दिया और उसे छुपाया, तो वो काफिर थे। अगर कहीं पर उससे, बाइबल से, उसकी सच्ची तालीमात से, यीशु की, हज़रत ईसा की, अगर कुछ लोगों ने, कुछ पादरियों ने लोगों को काटने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये भी ईश्वर हैं, तो फिर वो काफिर थे। और अगर आपके पास, या मुसलमान ये दावा करते हैं कि हमारे पास मुक्ति का मार्ग है, और आप उसे छुपाए हुए बैठे हैं और लोगों को अगर बताते नहीं, तो काफिर कौन? छुपाने वाला। ये मीनिंग माने किधर जा रहे हैं? और फिर तीसरी मीनिंग, काफिर के मीनिंग है अनग्रेटफुल। ये थर्ड मीनिंग है, नाशुक्रा, अकृतज्ञ। नाशुक्री किसी नेमत की होती है। अगर आपका दावा यह है कि नेमत है आपके पास, तो फिर नाशुक्री भी करने वाले आप ही निकलेंगे। जिसके पास नेमत नहीं होगी, आप कहते हैं हमारे पास है नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, कुरान है, दीन है, तो अगर है तो फिर नाशुक्री तो वही करेगा जिसके पास नेमत होगी। जिसके पास कोई नेमत नहीं, वो नाशुक्री करेगा कहां से? तो नाशुक्री भी उसी में से निकलेंगे। इस मानो में फिर काफिर शब्द का अर्थ तो उन्हीं की तरफ लौट के जाता है जो दूसरों को काफिर कहते हैं। इतनी बातें तो मैंने बताई, ये 3 अलग अलग मीनिंग है। इसमें से एक मीनिंग तो दूसरों पर जा सकता है, 2 मीनिंग इनके अपने ऊपर लौट कर आते हैं, लेकिन वो जो दूसरों पर जा सकता है, कहने का अधिकार तब भी नहीं है जब तक आपने बात समझा नहीं दी, पहुंचा नहीं दी। कहने का हक तो तब भी नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये धर्म, ये दीन को ठीक से नहीं समझने की वजह से हो रहा है, कुरान की शब्दावली को ठीक से नहीं समझने की वजह से हो रहा है, जिससे हमारे भाइयों को गलतफहमी होती है कि काफिर क्यों कहते हैं। कितनी कुफ्र की बातें तो ये करते हैं
और करते चले जा रहे हैं वो लोग, ये तो वहां जाकर हिसाब देना होगा कि काफिर कौन ठहरा था। राजू सिंह है, ये बोल रहे हैं 3 तलाक क्या है और मुस्लिम महिलाओं भी तलाक दे सकती हैं क्या? एक बार में जो 3 तलाक देते हैं क्या? फिर उसके बाद पूछा। देखिए असल में ये मैं जवाब दे देता हूँ। जब क्वेश्चन आया है आपको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था इस सवाल को, इसलिए कि ये प्रश्न विषय से मुताल्लिक नहीं था, लेकिन जब आपने पढ़ दिया है तो फिर मैं जवाब दे देता हूँ। 3 तलाक क्या है और क्या मुस्लिम महिलाएं भी तलाक दे सकती हैं। कुरान ये कहता है, जहां पर बात फिर उसी जगह पर आती है कि उससे दूर हो गए। अब 2 तरह के सेट आते हैं जिन्हें ट्रेडिशंस या परंपराएं या हदीसों के कहते हैं। कुछ लोग एक सेट हदीसों के मानते हैं, कुछ लोग दूसरे सेट हदीसों के मानते हैं। ये कहते हैं उनकी गलत, या गलत नहीं तो कम से कम कमजोर, ये कहते हैं इनकी गलत, या गलत नहीं तो कम से कम इनके मुकाबले में वीक। तो सारी जब ऐसा हो तो फिर आखिरी फाइनल अथॉरिटी कुरान को क्यों नहीं बनाते? सारी दिक्कत इसी जगह है। बल्कि फिर अभी काफिर का सवाल आया था, मैं कुरान शरीफ की एक आयत सुनाता हूं आपको। कुरान ने कहा वमल्लम याहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। इसको जो फाइनल अथॉरिटी या हकम नहीं बनाए, जो अल्लाह ने रिवील किया है, वही तो काफिर हैं। तो फाइनल अथॉरिटी से क्यों नहीं बनाते कि आखिरी फैसला इससे करा लें? इसलिए कि कुरान तो ये कहता है कि तलाको मर्रतान, 2 बार की तलाक जो है उससे तो वापसी हो सकती है। तो ये मर्रतान वर्ड जो है ये 2 अलग अलग मौकों के लिए आता है अरबी जबान के अंदर, ये एक साथ आता ही नहीं। कुरान शरीफ में और भी जगहों पर आया है ये वर्ड कि बनी इसराइल ने मर्रतैन 2 बार फसाद किया। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल के लिए तय कर दिया था कि वो जमीन में लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ मर्रतैन, कि जमीन में 2 बार ये फसाद करेंगे। तो 2 बार फसाद का मतलब ये नहीं होता कि कंटिन्यूअस चला रहा है, तब यहाँ पे फसाद खत्म हो गया था और वो शाम से यहाँ दूसरा शुरू हो गया। ये तो एक कहलाता है। 2 बार का मतलब उसके बीच में गैप, तो उसके बीच में हजारों साल का गैप है। कुरान शरीफ में ये लफ्ज जितनी जगह पर आया है वो 2 अलग अलग मौकों के लिए आया है, एक साथ के लिए नहीं आया। अगर डॉक्टर आपसे कहे कि ये आपको इसकी दिन में 3 बार 3 डोज लेनी है, 3 बार इसकी 3 डोज लेनी है आपको। अब आप तीनों एक साथ कह लें 3 बार मैंने 3 डोज ले ली, 3 बार नहीं ली आपने, एक बार में 3 ले ली, वो 3 बार हुआ ही नहीं। बात हो रही मर्रतैन, यानी 2 बार के बाद वापसी हो सकती है। और 2 बार के बाद वापसी का मतलब क्या है? एक बड़ा जुडिशियल, एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है पूरा, वाकई बहुत अच्छा प्रोसीजर है। बाकी दूसरी जगहों पर तो यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, सनातन धर्मी भाइयों के यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है बरसों एक दूसरे के, फिर वो दूसरों के साथ में रहने लगते हैं इलीगली। अगर कोई मर्डर नहीं कर पाता एक दूसरे का, तो दूसरों के साथ इलीगली रहते हैं, लेकिन अलहदगी नहीं हो पाती। बड़ी प्रॉब्लम है। ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, बोथ वेज हो सकता है। लेकिन अगर एक मर्तबा हो गया तो फिर कुरान ने उसका प्रोसीजर, कुरान ने उसके बारे में रखा है कि अगर एक बार ऐसा हो जाए किसी वजह से आपस में डिस्प्यूट में, तो बहुत सी कंडीशन है वहां पर। तन्हाई में नहीं कर सकते, हदीस है कि गवाह कर लिया करो, गवाह होने जरूरी है। तन्हाई में नहीं कर सकते, अचानक गुस्से में नहीं कर सकते, सोच समझ कर होना जरूरी है। बहुत सी कंडीशन है साथ में। और उसके बाद फिर एक पीरियड है जिसे यहाँ पर इद्दत कहते हैं, वेटिंग पीरियड। वो जो 3 मंथ का वेटिंग पीरियड है, उसमें अगर वापस एक दूसरे के साथ में मनमुटाव दूर हो जाए, इसलिए हुक्म यह है कि घर से भी ना जाएं, तलाक हो जाने के बाद भी वाइफ वहीं पर रहे, जाए नहीं और उसके साथ अच्छा सलूक हो, तो फिर जब साथ में रहेंगी तो फिर आपस में रिप्रोचमेंट हो जाएगा। ऐसा अगर कहीं जिंदगी में फिर कभी हो जाए तब भी फिर रिप्रोचमेंट हो सकता है। कभी और जिंदगी में हो जाए तो उसे कहते हैं तीसरी तलाक, कि उसके बाद आपस में रिप्रोचमेंट नहीं हो सकता। ये 3 तलाक की हकीकत है जिसको यहाँ पर ऐसा बना दिया गया है कि उससे हमारी लेडीज, औरतों के जो हक है, राइट्स हैं, उनका इन्फ्रिंजमेंट भी होता है। और अफसोस की बात तो है कि औरतें साथ देने लगी हैं, कि जाके दस्तखत चलते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलते हैं, उसपे लेडीज के भी सिग्नेचर होते हैं कि हाँ हम इसका साथ दे रहे हैं, ये ठीक है। भाई कम से कम अपने राइट्स के लिए खड़ी हो, जो कुछ इस्लाम ने आपको दिए कि नहीं इसमें हम साथ नहीं देंगे, वो मानेंगे नहीं। तो ये तो 3 तलाक की हकीकत है। पूछ रहे थे क्या क्या लेडीज भी दे सकती हैं? प्रोसीजर अलग है। इसलिए कि जब कुरान ने ये कहा कि रहना वहीं पर होगा साथ में, उसी घर के अंदर, ताकि आपस में वापस रुजू, यानी वापस आपस में हो सकता है रिप्रोचमेंट हो जाए। अब अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दी, तलाक दी, तो इसमें वाइफ की मर्जी नहीं थी, लेकिन हुक्म यह है कि देखो तुमने दे दी, अब रहे वो 3 महीने यहीं पर, कोई ज्यादती मत करना, इस बीच में शायद रिप्रोचमेंट हो जाए, ठीक है। अगर वाइफ ने तलाक दे दी तो हस्बैंड तो फिजिकली ज्यादा पावरफुल है, अब रहना उसी घर के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, वो मारकूट डालेगा। उसकी मर्जी नहीं थी हस्बैंड की, वाइफ ने तलाक दे दी, तो अब साथ में नहीं रह सकते, रिप्रोचमेंट नहीं हो पाएगा।
इसलिए इसका नाम बदला गया है, प्रोसीजर बदला गया है। दे सकती है वाइफ भी, इसे कहते हैं खुला। इसका कि नहीं पहले अलग हो जाए, खुला का मतलब अलग हो जाए। उसी घर के अंदर रहेंगी तो फिर आप वो ज्यादती करेगा, इसलिए कि हस्बैंड की मर्जी नहीं थी, तो दे तो ये भी सकती है, लेकिन उस देने का प्रोसीजर बदला गया है। और वो भी औरत की वजह से बदला गया, उसकी भलाई के लिए, कि वो पहले तो घर से अलग हो जाए और उसके बाद फिर हस्बैंड से कहे कि अब इस रिश्ते को खत्म करो। इवन अगर हस्बैंड उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर काजी को ये हुक्म है, या अदालत, काजी ही अदालत होती थी, कि अदालत को फिर ये हुक्म है कि फिर इस रिश्ते को खत्म करवा दो अगर बीच में रिप्रोचमेंट नहीं हो सका है। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं यहाँ पर, और भी बहुत सी हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर, उनके जीवन काल के अंदर, कि एक औरत थी वहां पर, वो आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके ईशदूत के पास आई और उन्होंने कहा कि हे ईशदूत, ए प्रॉफिट, मैं अपने हस्बैंड के अंदर कोई बुराई नहीं पाती, मैं इनकी कोई शिकायत नहीं कर रही, इनके दीन में कोई कमी नहीं है, ये मेरे साथ कोई बुराई नहीं करते, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने तुम्हें गिफ्ट में एक बाग दिया था, वापस कर सकती हूँ? कहने लगी कर दूंगी। बुलाया उनको हस्बैंड को, कहा कि ये ले लो और इसको तलाक दो। तो फिर फाइनल जजमेंट दे दिया। उसके अंदर ये भी जरूरी नहीं है कि ये पूछते कि भाई तुम्हारी ये डिमांड, उसने साफ साफ कह दिया, हदीस के अंदर मौजूद है कि इनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान की नेचर में कभी कभी ऐसा होता है कि वो कमी अदालत में साबित नहीं की जा सकती, लेकिन आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर रिश्ता नहीं चलेगा। कोशिश करनी चाहिए कि चल जाए, लेकिन नहीं चल सकता। और अगर वो कह रही है, औरत कह रही है या वाइफ कह रही है कि मैं किसी कीमत पर नहीं रह सकती, तो रिश्ता जहन्नम बन जाएगी। इसलिए कि इस्लाम ने कहा नरक बन जाएगी। इस्लाम ने कहा कि इस रिश्ते का एक पर्पज, एक उद्देश्य, एक मकसद ही यह है कि जिंदगी में सुकून आए। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। उसकी आयात में से, उसकी निशानियों, साइंस में से ईश्वर की एक ये है कि उसने तुम में से, तुम ही दोनों के लिए आपस में जोड़े बनाए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि जिंदगी एक दूसरे के साथ सुकून से गुजारो। और अगर जिंदगी में से सुकून खत्म हो जाए, नरक हो जाए, तो जिंदगी गुजारना बेकार हो गया साथ में। हस्बैंड चाहेगा तब भी रिश्ता खत्म होगा, वाइफ चाहेगी तब भी रिश्ता खत्म होगा। हाँ, प्रोसीजर अलग अलग है। ये तो हुई एक बात। ये दूसरी बात हुई कि यहाँ पर उस प्रोसीजर को प्रैक्टिकली डिफंक्ट कर दिया गया है, और हमारे काजी साहिबान जो है वो कहते हैं पहले साबित करो, पहले ये बताओ खराबी क्या थी। नहीं, ये कसूर नहीं सुनेंगे। साफ साफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने, पैगंबर ने, उन्होंने तो ये कहा था, उनसे बड़ा मुफ्ती कौन है? सबसे पहला फतवा तो उनका था। उन्होंने इसके ऊपर फैसला दिया था जब एक वाइफ ने कहा आने के बाद कि मैं नहीं रह सकती साथ में, शिकायत कुछ नहीं, इनके अंदर बुराई कोई नहीं, तो फिर रिश्ता हटा दिया, खत्म करवा दिया। वो ये हुक्म तो ये है। अब अगर यहाँ पर वो सही लागू नहीं किया जा रहा है, उससे खराबियां आ रही हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे, और वो सवाल वहां से आएंगे, जगह जगह बहुत से समाजों से की तरफ से सवाल आएंगे, और कॉमन सेंस भी यही कहेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहेगा कि ये गलत है और ज्यादती है। तो जो चीज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, इस्लाम ने तो उससे अलग कुछ भी नहीं बताया। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो और आए हैं, कह रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैं उन सब के भी दूंगा जवाब, लेकिन ईमेल ले लीजिए आप, ये बता देंगे मुझे, ईमेल पे भेजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। यहाँ पर जो टॉपिक से रिलेटेड है सिर्फ उनके जवाब दे सकता हूँ। इन सबके दूंगा जो आपने भेजे हैं, जो रिलेटेड नहीं हो और कोई करे उनके भी दूंगा, वो मुझे ईमेल से भेजिए, मैं जवाब दूंगा। आखिरी सवाल है, क्योंकि अब सब लोगों को जाना भी टाइम नहीं है। ये ISIS जो कर रहा है, क्या वो इस्लाम है? देखिए, ISIS जो कुछ कर रहा है, हम उसे सिर्फ ऐसे ही समझ सकते हैं जो न्यूज़ हमारे पास आती है। तो जो खबरें हमारे पास आती हैं, उसका तो अगर वही ISIS कर रहा है, और काफ़ी चांस इसका है कि क्योंकि सब तरफ से कोई जगह ऐसी बची नहीं कि जहाँ पे कोई और ग्रुप ये कहने वाला नहीं कि वो ये नहीं कर रहे जो कुछ वो कर रहे हैं। वो डिटेल मुझे नहीं कहनी यहाँ पर, इसलिए कि सब लोगों ने पढ़ी खबरें। तो फिर उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, इस जिहाद का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। उस चीज़ को जिहाद नहीं कहते, वो तो बदनामी है। जिहाद तो एक बहुत मुकद्दस, बहुत पवित्र ऐसा फेल है जिसके अंदर मैंने किताब लिखी है, यहाँ पे मौजूद है, आओ जिहाद करें, किताब है हमारे मकतबे की। यानी मैंने क्या लिखी है, बल्कि कुछ और लिखी तो दूसरों की। जी, हाल नंबर 12 में, स्टॉल नंबर 216, आओ जिहाद करें। हमने तो हिंदुओं से अपील की, आओ मिलकर जिहाद करें, गैर मुस्लिमों से। तो जिहाद किसे कहते हैं समझाया उसमें कि हम मिलकर उसकी सच्चाई को, अच्छाई को बाकी रखने के लिए लगातार कोशिश। उस लगातार कोशिश में कभी कभी ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग अगर बाधा डालें तो उसमें कोई आपस में इख्तिलाफ हो जाए और लड़ाई हो जाए, वरना उसके अंदर जिहाद का ताल्लुक लड़ाई से है ही नहीं।
तो उसके और उसको हर जगह पर जिहाद को लड़ाई कहने लगे। जिहाद की मीनिंग ही लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ असल में बहुत लंबा इसका जवाब है, बहुत लंबा जवाब है। मैं तो सिर्फ एक बात यहां पर सिर्फ मैं बता दूं कि कुरान ने तो जंग के मैदान के अंदर, एक बात कुरान की बता रहा हूं और एक बार हदीस की, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान ने कहा जंग के मैदान के अंदर वइन जनाहुल इस्सल में, हमला करने तो दूसरे लोग आए थे, तुमने नहीं किया था। अगर तुमने हमला किया था तो तुम जालिम हो। हमला करने दूसरे आए, अब तुम्हें डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हो। वइन जनाहुल इस्सल में, अगर वो फिर उसमें दुश्मन तुम्हारे पास न्योता भेजे, तुम्हारे पास ऑफर भेजे पीस का, संधि का, सुलह कर लो, फजनहला, कर लेना सुलह, तुम झुकना सुलह की तरफ। तो फिर अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई, जिन्होंने हमला किया था वही बीच में ये कहने लगे कि अब अच्छा लड़ाई रोक दो और पीस कीपिंग और सुलह कर ले, संधि कर ले। कब करेंगे ऐसा? जब करेंगे जब दब रहे होंगे, हार रहे होंगे। तो ये बात छोड़ी नहीं है। फिर कहा कुरान ने वहीं युरीदू यख्तऊ का, अगर उनका इरादा धोखा देने का होगा तब भी सुलह से नहीं हटोगे। अगर उन्होंने ऑफर दिया तो कर लो सुलह, उनका इरादा धोखा देने का, हार रहे हैं फिर भेजा सुलह का पैगाम। कहा कि उनका इरादा धोखा देने का होगा, वहीं युरीदू यख्तऊ का फइन्ना हस्बक अल्लाह, सुलह से मत हटना, पीछे संधि से पीछे मत हटना, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। तो इस्लाम ने तो इस हद तक जाने के बाद संधि की बात की मैदान जंग के अंदर भी। और फिर एक हदीस प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग सुना रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि जब जंग हो जाए, अगर जंग किन परिस्थितियों में होगी ये एक लंबा विषय है। गीता ने भी जंग की बात की, श्री कृष्ण ने भी जंग की बात की। उन्होंने कहा पांडवों से कि इस वक्त तुम हट गए तो अधर्म हो जाएगा, इस वक्त जंग करना तुम्हारा धर्म है। किन परिस्थितियों में इस्लाम कहता है जंग की, ये फिर लंबी बात है। अगर आपको डिटेल्स में बताऊं तो दुनिया में हर इंसान कहेगा ये तो बिल्कुल जायज है कि किन परिस्थितियों के अंदर शस्त्र उठाना जो है जरूरी है। अगर वो परिस्थितियां आ जाएं तब उस वक्त फिर युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा तो फिर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दिया, एक ज़ाब्ते अखलाक दिया प्रॉफिट मोहम्मद। उन्होंने कहा युद्ध के मैदान में मजदूरों को नहीं मारा जाएगा, युद्ध के मैदान में महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा, औरतों को नहीं मारा जाएगा, युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में बच्चों को नहीं मारा जाएगा, जंग के मैदान में युद्ध क्षेत्र के अंदर कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा फलदार, जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में कहीं आग नहीं लगाई जाएगी, युद्ध के मैदान में किसी की कोई इबादतगाह, कोई पूजा स्थल जो है उसे नहीं तोड़ा जाएगा, उसे नहीं गिराया जाएगा, अब जो लड़ नहीं रहा है उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। ये इतनी बातें आ गई, ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया। अब मुझे ये बताइए, कहा कि औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, औरतें क्या कर रही थी वहां पर? अगर लड़ नहीं रही होंगी तो नर्सिंग कर रही होंगी। मजदूर क्या कर रहे थे? हथियार लेकर गए होंगे दुश्मन के लिए। मजदूर पर को नहीं मारा जाएगा, हथियार लेकर गया था, अपनी मजदूरी कर रहा था, वो लड़ने नहीं आया था। लेडीज को नहीं मारा जाएगा, लड़ नहीं रही थी, अगर वो सिर्फ नर्सिंग कर रही थी, जख्मी थे, उनकी मरहम पट्टी कर रही थी, यानी दुश्मन की मदद कर रही थी, उनको नहीं मारा जा सकता, इसलिए कि डायरेक्ट नहीं लड़ रही थी। जो दीन ये कहे कि जंग के मैदान के अंदर वहां आई क्यों थी, वो दुश्मन की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हैं, उन पर हाथ नहीं उठेगा। अगर डायरेक्ट वो लड़ नहीं रहे, वो ये कहेगा किसी जगह जाने के बाद, गोलियां चलाने के बाद एक तरफ से बहुत से लोगों का सफाया कर दें, वो तो खालिश दहशतगर्दी है, वो तो टेररिज्म है। तो ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं उन सारी चीजों से जो हमारे पास खबरें आती हैं उसका, कि जो कुछ उन्होंने इस्लाम ने बताया था और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो जो खबरें हमारे पास आती हैं उसके हिसाब से सबसे बुरे मुजरिम है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, बीइंग ए मुस्लिम, कि आतंकवाद या दहशतगर्दी तो इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन अगर वो लोग करते हैं कि जो उसको जिहाद कहने लगते हैं, तो वो उनसे बहुत ज्यादा भयानक मुजरिम है, इसलिए कि वो इसे भी बदनाम कर रहे हैं। ये उन आतंकवादियों से ज्यादा भयानक मुजरिम है, उनसे ज्यादा बड़े मुजरिम है अगर वो इस्लाम के नाम पर ये कर रहे हैं। The last question because we are running out of time. यहाँ पे नाम नहीं लिखा है साहब ने अपना, लेकिन इनका प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। पिछले वर्ष मुरली मनोहर जोशी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से पहले मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा योगी कहा, तो क्या मोहम्मद साहब योगी थे या उनके पूर्वज योगाभ्यास करते थे? सनातन परंपरा से इसका कोई मैच है? क्वेश्चन इन शॉर्ट ये है, जो इन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मुरली मनोहर जोशी साहब ने कहा कि मोहम्मद साहब खुद बहुत बड़े योगी थे, ये ना, तो फिर क्या उनका योग से क्या संबंध, कुछ इस तरह का सवाल है। या योग परंपरा का मोहम्मद साहब से संबंध क्या उनकी बात जो है वो उचित है या नहीं है? मुरली मनोहर जोशी की उनके बारे में ये कहना कि वो योगी थे। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, जोड़, ये है मीनिंग योग के। ये उसके अंदर मैथमेटिक्स जब हिंदी में पढ़ाई जाती है तो वहां भी होता है कि 3 योग 2 बराबर 5, तो योग माने जोड़ या जोड़ना। लेकिन
रिलीजियस टर्मिनोलॉजी के अंदर इस्तिलाही तौर के ऊपर किससे जुड़ना असल में था, उससे जुड़ना जिसने सबको यहाँ पे मौजूद कर दिया, असल में वो योग था। तो उससे योग खाली की ये एक्सरसाइजेस का नाम नहीं था, कुछ व्यायाम का नाम नहीं था, कुछ फिजिकल एक्टिविटी का नाम खाली योग नहीं था, ये साथ में थी और इसके साथ में एक मेडिटेशन था और इसके साथ में उससे जुड़ने की कोशिश थी। ये कंबाइंड ये सारी चीजें मिलाने के बाद योग था। तो फिर एक योग उन्होंने नमाज की शक्ल में दिया है, नमाज के रूप में। जिनको कह रहे हैं कि क्या वो योगी थे, उन्होंने आप सबको योग करने के लिए दिया है। आपने क्या किया, आपने खाली वो तो ले लिया, जैसे बाबा रामदेव तो वो अपनी बताते हैं एक्सरसाइज, आपने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी रुकू और सजदे वाली, उसमें आप कुछ पाठ कर लेते हैं, आपने कहा कि अब नमाज हो गई। उसके अंदर तो नमाज तो शुरू भी नहीं होती है, वो खत्म हो जाती है। उन्होंने तो ये कहा था कि ये कैसे होगी बंदगी, कैसे होगी, ये कहा था कि कान का तरह, वहां ऐसे जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, जैसे कि ये मेडिटेशन था कि उसको देखने के तसव्वुर करोगे। फिर ये कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सको फ़इन्नहु यरा, तो फिर तुम्हें मेडिटेशन इस पर करना है कि वो मौजूद है, वो मुझे देख रहा है। यहां से तो नमाज शुरू होगी कि वो मौजूद है, कोई मुलाकात नहीं, कोई उसकी मौजूदगी का तसव्वुर नहीं। आपने कुछ पाठ किया और चले आए और कहते हैं नमाज हो गई। नमाज को कहा था ना सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज तो ईमान लाने वालों की मेराज है। मेराज क्या चीज थी, प्रॉफिट मोहम्मद को ले जाया गया आसमानों पर और वो खुदा के ईश्वर के करीब तरीन स्थल तक पहुंचे, मुलाकात। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुलाकात यहीं पर हो जाएगी, इसी दुनिया के अंदर वो लेकर आया हूं, नमाज वहां से लाए थे। आप में से कितनों की मुलाकात होती है, कितने इस तसव्वुर के साथ में, इस मेडिटेशन, इस ध्यान के साथ में नमाज में होते हैं कि इस वक्त वो यहाँ मौजूद है, मैं उसके सामने हूं। ये तो खुद कुछ आसन होते हैं, कुछ पाठ होता है और चले आए। ये नमाज का, ये जो है ये नमाज की बॉडी है और नमाज का शरीर तो वो ध्यान था उसके ऊपर कि वो यहाँ मौजूद है, इस वक्त मैं उसके सामने हूं। ये ध्यान तो कोई करता ही नहीं है। अपने आप के ध्यान तो मालूम नहीं कहां कहां दौड़ रहे होते हैं, किस किस चीज के अंदर और रटी हुई चीज पढ़ रहे होते हैं। तो फिर वो नमाज तो शुरू भी नहीं होती और नमाज खत्म हो जाती है। तो वो तो योग था पूरा, उस योग का सारा पार्ट है, उसमें वो ध्यान भी होना था और उसके अंदर ये कुछ आसन भी थे। वो आसन अपनी जगह पर बहुत मुफीद है, बहुत फायदे के हैं, बहुत लाभदायक है। तो कुछ आसन थे और एक वो ध्यान था और कुछ पाठ था। इन तीनों का कॉम्बिनेशन असल में योग था। इन तीनों ही का कॉम्बिनेशन, हमारे यहाँ रामदेव बाबा जो है वो योग की बात करते हैं तो वो खाली कुछ एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, व्यायाम की। तो योग तो जुड़ना था, उससे जुड़ना, वो पार्ट इनके यहाँ से गायब हो गया और वो जुड़ने वाला पार्ट आपने अपनी नमाज में से खो दिया। तो फिर बात ये कि ये योग तो ना ये बची ना योग वो बचा। योगी थे तो वो योगी, उन्होंने तो योग आप सबको करने को दिया था और कोई बात उन्होंने गलत नहीं की, मौलवी मनोहर जोशी साहब ने। Role of brotherhood and peace in the family. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब कोई धर्म है और दीन है, मैं धर्म और दीन को पहले समझ लेंगे। बात यह कि कुछ चीज़ें हमारी अपनी गढ़ी हुई होती हैं, हमारी अपनी बनाई भी होती हैं, हम गढ़ी हुई ना कहें, उसे फिलॉसफी कहते हैं, उसे दर्शन कहते हैं, उसे इज्म कहते हैं, उसे मत कहते हैं। जो चीज़ ईश्वर की तरफ से आई, उसने हमें यहाँ जिसने मौजूद कर दिया, उसने जो कुछ बताया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो फिर धर्म तो उसका दिया हुआ होगा, धर्म जो है वो हमारा बनाया हुआ, हमारा सोचा हुआ नहीं होगा। हमें बनाया उसने, फैमिली भी उसी ने बनाई। अभी बात हो रही थी आदम की, दुनिया के पहले इंसान को या पहली औरत, पहले मर्द को नीचे उतार दिया जन्नत से जमीन पर, स्वर्ग लोक से यहाँ पर जमीन के ऊपर अवतरण हुआ उनका। ऐसे ही तो सब पैदा हो सकते थे, सब आ सकते थे, नहीं आ सकते थे दुनिया में सब ऐसी, भाई उनके माता पिता नहीं थे, अब बाकी सब आपके क्यों होते हैं? जब उसने ऐसा किया और वो सक्षम है इसमें और वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर दुनिया की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ सकती थी कि एक साहब जो है वो नदी में से तैरते हुए निकले, एक बढ़ गया, एक पहाड़ की गुफा में से ऊपर चोटी पे से उतरते हुए आए, एक और बढ़ गया, एक गुफा में से निकला, एक और बढ़ गया। तो फिर किसी का किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अकेला होता वो। अब उसके बाद से जो दुनिया यहां पर शुरू हुई, उसने एक समाज क्रिएट किया फैमिली के थ्रू। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी एक मां थी, मैं बहुत जमाने तक बिल्कुल मजबूर था, असहाय था, लाखों हजारों दफा मैं मर गया होता अगर उसने अपनी कुर्बानियां नहीं दी होती और मेरे पीछे उसने अपनी जान हलकाल नहीं की होती, तो मैं यहां नहीं बैठा होता। मेरे एक पिता थे, उन्होंने अपनी बहुत की बड़ी सेक्रीफाइसेस है मुझे जिंदा रखने के अंदर। उसके अलावा औरों की भी है, कुछ आसपास के करीबी लोगों की, जो जितने करीब है उन सब की भी है, वरना मैं यहां बैठा बात नहीं कर रहा होता। आप सबके साथ ऐसा हुआ, तो ये हमारे पर ऋण है या नहीं है? है तो फिर उसे पे बैक करना है या नहीं करना है?
तो ये एक समाज यहां से शुरू हुआ, एक फैमिली से स्टार्ट किया। जब फैमिली से स्टार्ट किया, और ये भी उसी ने किया, अब कोई डायरेक्ट पैदा नहीं होता आदम की तरह, अब हर एक बच्चे से बड़ा होता है, हर एक का एक पिता होते हैं, एक माता होते हैं, एक फैमिली होती है। तो फिर जब उनको कुछ मिलता है दूसरों से, तो कुछ उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जिसने पैदा किया, जिसने ये रिश्ता बनाया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां भी उसने बताई। अब जब उससे दूरी हो जाएगी तो फिर स्वार्थ होता है अपना। चाहे हम कितने ही अपने यहाँ पर कानून बना लें, और चाहे आपस में हम कितनी ही मॉरल वैल्यूज फिक्स कर लें आपस में, लेकिन होता ही है कि जब मेरा स्वार्थ आता है तो फिर मैं उस वक्त भूल जाता हूं। ये तो मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे ये मालूम हो कि मुझे अपने जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका मुझे हिसाब भी देना है। मैं ऐसे नहीं हूं, उस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखी गई थी। तो फिर मुझे अगर मेरे पास ज्यादा है, अगर मेरे पास शक्ति ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो मुझे कमजोर के साथ ज्यादती नहीं करनी है। आपस में एक की दूसरे के ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी और क्या राइट्स थे, ये जिम्मेदारियां भी डिफाइन की गई थी। लंबी बात है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, जो राइट्स भी डिफाइन किए गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। अगर वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे नहीं किए तो ऐसा नहीं होगा कि इसका हिसाब नहीं देना पड़े। उसने यहाँ अगर फैमिली और परिवार बनाया है, तो जैसे बात ये हो रही थी कि यहाँ दुनिया में एक माता पिता की सब संतान है, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन एक दूसरे को भाई नहीं समझ रहे। ऐसे ही यहाँ पर एक फैमिली के थ्रू, एक समाज के थ्रू हमें यहाँ पर लाया गया। अब नहीं समझ रहे कि समाज के थ्रू लाया गया, और उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे, और अपनी मर्जी के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर ज्यादती कर जाते हैं एक दूसरे के लिए, या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते, तो बहरहाल इसका भी हिसाब देना होगा। यहाँ ये बात तो फिर लंबी है कि हमारी जिम्मेदारियां थी क्या क्या, बताया क्या क्या गया था, लेकिन जो कुछ जब यहाँ पर रखा था तो फिर जिसने भेजा था उसने ये भी बताया था कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। उसने राइट्स भी बताए थे, तुम्हारे राइट्स क्या है, हक क्या है, और तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। समाज ऐसे ही चलता है, एक के प्रति दूसरे की जिम्मेदारियां। हम तन्हा नहीं है, हम अकेले नहीं है। ये पहले तो असल बात है कि छोटा परिवार, हमारी जो क्लोज फैमिली, जिसे आपने कहा बहन ने यहाँ पर लाई थी, उसके बाद फिर मानव परिवार आता है। वो बात को अगर यहाँ पर आपस में नहीं रह सके, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके, तो बाकी मानव परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर सकते। कोई अगर अपनी एक माँ ने तड़प तड़प कर कितने दिनों मेहनत करने के बाद अगर बच्चे को पाला बड़ा किया, और बल्कि एक मैं आपको हदीस सुनाऊं, जिम्मेदारियां कैसे बताई थी उन्होंने। एक प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ बताया, एक सत्संगी, एक सहाबी आए, कंपेनियन, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माता को हज कराया। हज बड़ी टफ एक्सरसाइज है, ऑन फुट, अपने कंधों पे बिठा के तवाफ किया, फिर सफा मरवा की जो है वो सही की, उसके बाद पहाड़ियों के बीच में 7 चक्कर, फिर अराफात के मैदान। ये 5-6 दिन बहुत टफ होते हैं अकेले करने के भी। कंधे पे माँ को बिठा कर किया। मेरी माँ बूढ़ी थी, मैंने कंधे से नहीं उतारा, उसे कंधे पर बिठाकर मैं करता रहा। ये अब ये बताइए, मैंने उनको ऐसे हज कराया और कंधे से उतारा नहीं, तो उनके मैंने जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो हक था, वो मैंने अदा कर दिया या नहीं कर दिया? हक चुका दिया? तो उनका चेहरा लाल हो गया नाराजगी से, कहने लगे हक चुका दिया तुमने, ये बातें पूछ रहे हो? अरे अभी तो उसका हक भी अदा नहीं हुआ कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो पहली पेन की लहर आई थी, अभी उसका भी हक अदा नहीं हुआ, तुम हक की बात कर रहे हो। तो बाकी की जिम्मेदारियां तो ऐसे बताई थी। अब यही बच्चे बड़े होने के बाद कहते हैं हमारी अपनी जिंदगी है, हम जैसे दिल चाहेगा जिएंगे। तुम होते कहाँ यहाँ पर? अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी है तुम्हारी, लेकिन तुम यहाँ होते कब? तुम तो 1000 दफा मर गए होते अगर तुम्हें माँ यहाँ तक नहीं लाई होती, अगर तुम्हारे बाप तुम्हें यहाँ तक नहीं लाए होते, और बहुत से दूसरे लोग भी। मैं जा रहा हूँ रोड के ऊपर, या मैं क्या आप जा रहे हैं, एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की, छोटा सा बच्चा। अब उसको नहीं खबर कि सामने से क्या आ रहा है, सामने से एक तेज गाड़ी आ रही थी, आपने जल्दी से हाथ पकड़ के खींचा, आप नहीं जानते कौन है, बच गया, खत्म हो जाता, श्योर शॉट डेथ थी। बच्चे को परवाह ही नहीं, फिर उसके बाद आपने हाथ छोड़ दिया, वो भाग गया, उसे जिंदगी भर याद ही नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा कितनी दफा मेरे साथ हुआ होगा, ऐसा कितनी दफा आपके साथ हुआ होगा कि आपको याद नहीं। कितने लोगों ने आपको जिंदगी दी है, वो कर्जा है या नहीं है? ये समाज का कर्जा है। तो फिर वो कर्जा क्या है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये फिर उसने बताया था, जिसने हमें यहां पर रखा है कि तुम्हें कैसे रहना था। उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल, कहा माँ और बाप के अंदर, उसने 3 बार कहा, उन्होंने पूछा कि बताइए ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा मेरे आदर का, मेरे सम्मान का पात्र या मुस्तहिक कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा, तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ, योर मदर। उन्होंने कहा अच्छा फिर नेक्स्ट, ही सेड योर मदर। फिर उनका नेक्स्ट, तीसरी बार कहा, और उसके बाद उनका योर मदर, तीसरी बार। फिर उनका फिर नेक्स्ट, वो पूछे चले गए, चौथी बार उनका योर फादर। क्योंकि तीसरा 3 दर्जे आदर का, इसलिए कि उसकी कुर्बानियां ज्यादा थी, उसका त्याग ज्यादा था।
तो फिर ये सारी चीजें अगर हम छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, तो परिवार और फैमिली, तो मैंने कुछ हिस्ट्री इंसिडेंट्स दिए हैं, लंबा टॉपिक है कि राइट्स क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लेकिन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम फिक्स नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां और हुकूक हम फिक्स नहीं करेंगे। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो होंगे जो हमें दी गई हैं, जिसने हमें पैदा किया वो जानता है, तब फिर आपस में एक संतुलित समाज बनेगा, ये छोटा परिवार भी और मानव परिवार भी। Thank you all for attending this lecture. We have some free pamphlets and copies of the Quran. You can avail them.